And as of today's closing, our Nifty was down 4%. So I conclude that India is a better market. Everything is hunky dory. We are not dependent on anybody. I, me, and myself. That's the Indian market. It's very, very pathetic. Lot of investors are buying. See, I don't know when it will turn, but I know that US market has turned. Now, how long we will not turn is $1 million question. Now, already the XGX is showing 200 points down. What to do? Nothing. So, instead of rejoicing, just concentrate on your portfolio. And this thought process that everything is for long term and 10 years, it won't work. There are very few companies which will remain after 10 years. Mark my words. And another most important thing is somebody has got into the, what do you say, into the mindset that he wants to be the number one in the world. Now, for that, he's going to rig the whole market. Good. If you are a short seller, very good. If you are an investor, very, very good. So, this is a golden opportunity. Somebody is, what do you say, somebody is want to be number one is, but now just look at the companies he owns. Look how he can be number one. Okay, sorry. In my entire life, I've seen many people, including Mr. Azim Premji, Mr. Sangvi of Sun Pharma, and all being at the list, in the list. Anil Ambani. Only exception is Mr. Mukesh Ambani. He is there constantly. Rest, everybody is gone down. So it might take 10 days, 15 days, month. Uh, uh, this person also will follow suit with so much of debt as reported by Fitch. It's going to be hell of a problem. See, I only think I trade very less. I am short four scripts since ages. That's all. I don't play indices. I genuinely believe that you want to buy shares, buy good shares, buy QSR, buy industrials. Be happy. ABB 3300. What? What do you want? It will become 6,000. So, such rare shares are very different. But if you tell me HDFC Bank and all that, they will go nowhere. For years together, they will remain here. So, the whole point is be in good shares if you can identify, or you go to a no, but if you go to a professional manager also, they are idiots, most of them. So mutual fund is the route. But suppose you invest in mutual funds. I think there's 25, 30 lakhs crores in mutual funds. Just 1 lakh, if redeemed, 1 lakh crore be redeemed. The state of the mutual fund industry would be in dire state.
I very well remember in early 2000s, if mutual fund wanted money because there was redemption pressure, they used to call up people like me and say, please take this. If you want, we will take it back after a few days. So I'm just saying it won't happen. Now RBI has opened a credit line also, but there is a distinct possibility of this happening. Now, when I say distinct possibility, I'm 100% certain it's going to happen. What is stock market? It's a game of psychology, nothing else. Everybody wants to buy, everybody wants to sell. Some want to buy, some want to sell. That is market. That is psychology. Now, once in every 5 years, 7 years, psychology turns totally positive or totally negative. So, we have been seeing a lot of positivity. Now is the turn of negativity. If negativity comes in all of a sudden, where are the buyers? This market is so illiquid, so illiquid. It's very difficult to sell at 10 lots also. So the point I'm trying to make is be careful. Don't get overexcited, and don't tell me I'm drunk. I drink 2, 3 beers a month. Okay, that's it. Otherwise, I'm not drunk. And lastly, I would suggest look at the world. Look at the world. Try and understand economics, how markets function. Don't look at India only. And have a world view. Have a world view. Look at everything possible. And everything is available on the net. You don't have to spend a single paisa. And another thing is, please, please don't write options. They will kill you like anybody's business. You will be nowhere within a flip, within a nanosecond. You will be out of the market. Don't. I think I have said whatever I wanted. There was one more thing I wanted to say is, mm, okay, anyway, I'll butt in when now. Okay, Samath, what's your call? Sir, I will speak after some time, sir. Let other speakers speak. I am Okay, somewhere outside, sir. yeah, yeah. Chirag bhai? जी सर गुड इवनिंग थैंक यू Good फॉर हैविंग मी सर आप जो आप कह रहे हैं वो तो ऑब्वियस था मतलब अभी इन हाइंडसाइट लगता है कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं बट माय ट्रेड बुक शोज फ्राइडे आई टुक लॉन्ग्स and yesterday I had taken sorry yeah so yesterday I took longs and on Friday I had taken shorts. I अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था 18,000 पे सारा कैश पे हूँ मैं और कुछ मेरा बहुत ही डीप वैल्यू पे है जो 15 साल से हेल्ड है वो सब रखा हुआ है सो बाकी तो सर पोजिशनल प्ले है अभी एक बार मार्केट में घुसे हैं तो फिर निकलना थोड़ा लत है सर evening. तो खेलना तो है ही तो खेल रहे हैं सर डायरेक्शनल खेल रहे हैं बस द अटेम्प्ट इज दैट कि फ्लिप मतलब अगर मार्केट मूव कर रही है तो फिर देन यू क्विकली फ्लिप टू द अदर डायरेक्शन इट्स अ लिटिल हार्ड फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू दैट बट बस यही है सर ऊपर नीचे कभी कभी तो इंट्राडे ऑल्सो बीच में आज सोचा था बीच में शॉर्ट करूंगा किया भी था शॉर्ट थोड़ी देर फिर वो पोजीशन स्टार्टेड मूविंग अगेंस्ट मी सो देन डबल करके फिर लॉन्ग चला गया तो रिकवर हो गया थोड़ा बहुत बट द या दैट्स द
That's how I'm playing it honestly. बाकी अदरवाइज आई एम नॉट होल्डिंग एनी लॉन्ग टर्म शेयर्स. ये पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पे. बस जस्ट दैट कि अब जैसे एसबीआई मेरा 15 साल से पड़ा हुआ है, वो बोनस हो के इतना कम दाम है कि मैंने कहा छोड़ो उसको कौन बेचेगा. बट Oh, बियॉन्ड दैट आई हैव नथिंग. good. I remembered now that look at the world, yeah. It's not easy. It's about to blow up, and we feel India is different. Nothing will affect us. We are different, and we buy shares because we believe in our country. Now that's a very stupid way of investing. You don't buy shares because you love your country. You pay your taxes and all that to love your country. You don't buy shares. So I'm just saying, please be rational while buying. I okay, markets are up, everybody is happy. But if you see from July 2021, market is here only, boss. It has gone nowhere. You have paid 50, 60 rupees as charges every month. Every month. And where are you? So 700, 800 rupees you would have paid as charges. So it's it's very easy to say मैंने ये कर लिया नीचे में ले लिया ऊपर में बेच दिया ना. But when you are sitting on the machine, it's damn difficult. After so much of experience also, I find it tough because this is not a market. This is out and out a casino. So for me, it's very difficult to adjust to this, but somehow I have adjusted, but not with 100%, say, or 30% I understand, 70% I don't. Why? Why are you are playing the market? आपको अच्छा लगता है लेके बैठ जाओ ना. फिर रोज वो ट्विटर पे डालो इसके नीचे खराब है, इसके नीचे इसके ऊपर अच्छा है. Then you unnecessary bother people. New hike coming. Suppose ये 400 पॉइंट आज बढ़ा, whatever 400 पॉइंट, ये 20 दिन 400 बढ़ेगा तो 8,000 पॉइंट होएगा. और 4 महीना बाकी है दिसंबर तक, दिसंबर से तो अपना 32,000 हो जाता है. तो ऐसे ही अपना 50,000 निफ्टी हो जाता है. Markets don't work like this. They don't work like this. Everything will come to its fundamental value, the intrinsic value, the terminal value. It will come. I have been wrong by few months, but I still maintain that I will be right. 100% I'll be right. And I see all the signs. If I were in USA, I would have been right. If I would have been in US, I would have been right. It's just okay. 64, 65. जाना तो जाना कहाँ. But it's a very, very unnatural market. Please take care. Okay. Now, Edie was there. Yeah, Srini. Yes, sir. Good evening, sir. Good to have your advice on, especially on days like this. Three, four quick points. One is nothing. I mean, to the audience, I'm a marketer.
I'm not really a professional trader. I'm a professional marketer. So nothing much has changed on ground. Jobs are difficult. FMCG numbers are struggling in volumes across categories. They're barely managing revenue growth because of price hikes. Similarly, handsets, two-wheeler, four-wheeler, etc. गॉसिप मतलब आज एफएमसीजी सर्कल में वो रिलायंस एजीएम का स्लाइड घूम रहा है कि अगर मुकेश भाई आके 30,000 सॉरी 50,000 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहते हैं in FMCG. The FMCG is not like tech or telecom. If Google is free, the whole world starts using it. ऐसा नहीं मतलब FMCG is not like that. 2 रुपया कम किया हम सब लोग नारियल तेल यूज करेंगे या सब लोग XYZ product यूज करेंगे. So and nobody doubts Mr. Ambani's ability to execute. So I think either some of these price earning multiples will remain or Mr. Ambani's plans will not get implemented. I don't think I want to bet on his lack of ability to implement. So I think there's a lot of nervousness at senior levels about this thing. That was one. Second is a lot of people have been saying capex cycle, capex cycle. मुझे आता नहीं है capex cycle. तो आज एक tweet आया कि private capex has doubled in 2021/22 versus 20 the previous year. So it turns out, I mean, it's a headline. It got only 5 retweets because the bar very clearly shows COVID year was 75,000 crores. The next financial year was 1,50,000 crores. The last time we saw, other than COVID, 1,50,000 crores of private capex sanction was in 2014-15. So our capex is that behind. So if anyone has this capex story data, मेरे को बताइए जरा. I would love to know more. So I think narrative continues to be far stretched from reality. इतना hyperbole narrative चल रहा है. And Sharad sir, to your point on worldview, I've said it earlier. The Fed has to restore credibility to the dollar. कि वो dollar toilet paper बन गया है. It's not able to buy anything. It's not able to protect purchasing power. And he has very clearly said he's going to do that. And US markets, at least, are a lot more rational. I think they're going to follow the Fed. The mistake he made was he said something that sounded dovish by saying neutral rate, etc. in June. And markets took him up, saying, आप बोल रहे dovish, तो ठीक है, हम बढ़े आएंगे. And now he said, no, no, I didn't mean that. And he's made it very explicit, short of using bad language. This is a very harsh speech, only 11 minutes. Normally it's a half an hour, 1 hour. For, there's decorum and all that stuff. So it was very sharp and pointed. And markets are again obeying. So US is quite rational, and I think there'll be effects all over the world. This is a survival for the country because a dollar gir gaya, so USA will really go under. So I don't think I would short the Fed's ability and intention of the whole US to try and protect its currency as long as it can. So meanwhile, if people feel capex cycle is back and jobs are booming, I think that's a risk they are taking, not Srini, backed by data. Srini, Yes. sorry to disturb you, but in the last spaces or somewhere, we were arguing about the our 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 tech company's employment, and thereafter you tweeted also that yes, it is there in money control and all that. You remember? Yes, sir. So if this is the situation, all tech companies have slowed down. I have a few friends, they are struggling. So what will happen to the employment area? So, I mean, if you remember, we had this debate, not debate, some maybe 3-4 months back. My claim was, जो आपने भी agree किया कि आपने पहले spot किया था, that India is seeing a economic shock wave traveling from the bottom of the pyramid upwards. So now, when I look at the consumer pyramid, now it's hitting people around us, and I have people in Hyderabad in my circles. Some of them are entrepreneurs, tech entrepreneurs. They're very happy.
salaries गिर रहा है, लोग अभी interview के लिए आ रहे हैं, and so on. So this is the last bastion. This is like now the blue chips will fall because white collar tech jobs have been probably the only thing propping up the that top 6 crore India pyramid consumption growth story. तो ये लास्ट वो है, अभी ये गिरेगा तो फिर we'll see the top 6 crore Indians consumption growth also start to falter, maybe in No, few no, no, quarters. no, Srini, for example, Wipro, it has a margin of 14.3%. Tech Mahindra has a margin of 12% or 11%. How on the earth can you justify these rates? Because of antique value or what? It should go to Tech Mahindra at around 400 or so, and Wipro at 200. I don't understand why you are buying this. For what joy? Just because it's going up by 5 rupees, 10 rupees. You buy a share. Come on, yaar. You are destroying your wealth. So there are many examples, many examples where your money is being destroyed. You are not aware of it. Please recheck your portfolio. That's it. Okay. Okay. Who's next now? Rachit. Yes, sir. Sir, my view on the market right now is neutral, or I should say that it will remain sideways in the month of September. But to your point, I want to add that there will be brutal sell-off that will begin in the month of September in stocks like in stocks from Adani Group, NDTV, and Tata Elxsi. Also, I would like to say that I was looking at the monthly chart of Bajaj Holdings, and I somehow feel that the Bajaj Holdings also has created a very long term top, and it will not reclaim its high of 6,500 something that was created in the month of April for a very long time. But the overall market view for September month is very sideways. Or for first 15 days, it go a little down also, but more or less remain sideways. And this market up move will end at 17,925 is what I understand, and will start to roll over again towards the downside in this week itself is what I understand. Viraj. Good evening, Sharad sir. Good Uh, evening. my question is basically, uh, as we know, the crude is climbing up again, and September has been a worst month for S&P 500 since 1945, with index advancing only 44 times, right? And the kind of Fed, the hawkish view which Fed has. Now, I didn't understand today's market move in terms of, the FII is buying and DIs were selling, but FIIs, what was the reason, sir? If you could just put some light. No, in the beginning, I explained to you there was a rebalancing. A lot of people were aware. So in the morning, they picked up all the shares. Then they took the market up, and in the end, they supplied it to the uh, FIIs. If you look at the charts, so it's there, very visible. It was just a bum move. Don't read too much into it. See, no markets can change course just like that. It has to be gradual if it is genuine. It can't be like this. That's my view. Viraj, anything else, please? That's it, sir. And last time, your suggestion of watching the tape is really helping me. It doesn't require analytical skills or any other thing. The price action happens on the tape, sir. So thank you so much for that. No, no, because my IQ levels are very low.
and I don't understand charts and blue lines and red lines. Tape reading is the easiest way, and I think it will help everybody else. Rishi bhai, boliye. Hi, Sharad bhai. Good evening. How are you? Good evening. Uh, as you know, my opinion is always different from you. लास्ट टाइम भी जब आपने मंदी की बात की थी तो मैंने आपको एक 23,000 करोड़ का एक एफआई का फ्लो भी भेजा था 15 दिन का, Mm, और मैंने mm, आपको बोला भी था सर कि इट्स लिक्विडिटी डेल्यूज विच इज कमिंग इन द मार्केट, एंड आई थिंक द फाइनल फिगर जो आज 4,000 करोड़ हो गया, हो सकता है कल भी कुछ हो जाए, तो इट विल क्रॉस समवेयर बिटवीन 55,000 करोड़ की बाइंग, एक mm, महीने की बाइंग है। mm, मेरा पॉइंट्स ये है जो कि मैं आपको हर समय भी बोल रहा था, आपने बोला था कि मैं अडानी को शॉर्ट करूं, मतलब आप बोल रहे थे कि अडानी ग्रुप को शॉर्ट करो बिकॉज आपको उनकी बैलेंस शीट नहीं समझ में आती। हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू नीड टू सी वन थिंग कि अडानी ग्रुप के फ्री फ्लोट है ही नहीं मार्केट में। आप शॉर्ट करते रहोगे वो ऊपर जाता रहेगा, जो शॉर्ट करने वाला है वो खत्म हो जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन लास्ट 2 years। those who shorted mm, Adani, they have actually butchered off. They have finished off. So that is one thing which we need to, मतलब जो हम बोलते हैं ना भाव प्रधान है, तो भाव के अगेंस्ट आप जाओगे तो mm. वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंडली, इफ यू अलाउ मी टू 2 मिनट्स, मैं अपने हो सकता नहीं हूँ नहीं, बोलो बोलो बोलो. दो चीज है। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट $35 बिलियन का माल एफआईए ने बेचा था लास्ट 6-7 महीने में, Mm, एंड दिस वाज द मार्केट विच एब्जॉर्व दैट सेलिंग। इनफैक्ट mm, हम लोग डाउजोन से भी कम गिरे थे। mm, सो mm, मतलब 2 लाख करोड़ का माल एफआईए बेच के निकल गया, और mm, इम्पैक्ट कॉस्ट 10% भी नहीं रहा। सो mm, एक एफआईए को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब मार्केट घूमता है, और जब mm, देखिए द प्रॉब्लम अब ये क्या हो रहा है ना, अब इन्फ्लेशन इज नो मोर अ प्रॉब्लम, हर जगह इन्फ्लेशन अब कम होने लग गया है। अगर आप mm, यूरोपियन नेशन में भी देखोगे, हर जगह इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन बिकॉज देयर इज अ रिसेशन इज सेटिंग इन द मार्केट, because of the high inflation and the strong, central bank actions। एक रिसेशनरी ट्रेंड आने लग गया है, तो डिमांड डिप होने लग गई है, लोगों के मॉर्गेज रेट्स बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गए हैं, सब कुछ होने के कारण क्या है, थोड़ा रिसेशन वाली फीलिंग आ गई है। तो जब रिसेशन वाली फीलिंग आती है तो रिसेशन में इन्फ्लेशन डजंट गो साइमल्टेनियसली, दे मे क्रॉस इंटरसेक्ट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, बट दे mm, कैनॉट गो साइमल्टेनियसली, दे आर अपोजिट फोर्सेस एक्चुअली, रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज नो मोर अ वरी, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट, इट इज नॉट अ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल डेटा नहीं देखता है वो, फॉरवर्ड डेटा देखता है, हिस्टोरिकल डेटा हम लोग देखते हैं। सो फॉरवर्ड डेटा क्या हो रहा है, अब आप रिसेशन की तरफ जा रहे हो, आपकी ग्रोथ के नीचे आ रहा है, पॉलिटिक अमेरिका है या यूरोप है, ऑल आर डेमोक्रेसीज, दे हैव टू फेस देयर पीपल इन अपकमिंग इलेक्शन, दे कैन नॉट गो विद द रिसेशन इन देयर हैंड एंड फेस द पीपल। तो पॉलिटिकल एक्शन आएगा, वो फेड को बोलेगा कि बॉस तुम ठीक है, हॉकिश हॉकिश कर रहा है, अब ज्यादा हॉकिश मत करो, मेरा तो भैया नैया डूब रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट डू हॉकिश थिंग, आप ठीक है बोल रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपको जितना एक टारगेट अचीव करना है अपने आप अचीव कर लिया है, या हो सकता है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आप कर लो, आपको क्रूड हो सकता है $70-80 तक गिराना है, गिरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, विच इज हैपनिंग, कमोडिटी प्राइसेस हैव गॉन डाउन, क्रूड प्राइसेस आर गोइंग डाउन, सब चीजें हो रही है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, इंडिया को होने वाला है, बिकॉज एक तो इंडिया के पास खुद की ग्रोथ है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बाहर में ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है कहीं भी, ब्रिटेन में नहीं है, आप इटली में देख लो, इटली में अभी आउट हो गई। सो बहुत जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, उसमें अब स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज इन द क्वेश्चन मार्क राइट नाउ। सो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, दैट इज द वन पॉइंट। सेकेंडली, योर मैक्रो इकोनॉमिक्स आर मच मच बेटर देन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, यू आर द वन ऑफ द कंट्रीज विच इज शोइंग सॉलिड ग्रोथ, कंजम्पशन आइटम्स आर गिविंग अ वेरी गुड पिक्चर्स, आप गाड़ियां सबसे ज्यादा बिक रही है, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, होटल बुकिंग हाई है, आपके एयरलाइन बुकिंग से 80% के ऊपर का लोड है। सो ऑल दिस फैक्टर्स जो आप देखते हो, जीएसटी कलेक्शन भी आप देखते हो, पहले लोगों ने बोला कि यार जीएसटी तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने लग गए, अब कमोडिटीज के प्राइस तो 25-25% घट गए, उसके बाद भी जीएसटी कलेक्शन इज गुड। सो एवरीथिंग लुक्स गुड, एंड सेकेंडली तो एफआईआई वालों ने 2 लाख करोड़ का माल बेचा, इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं हुआ। अब उनको क्या लग रहा है कि भैया इससे ये मार्केट में लिक्विडिटी है। आज हम लोग सबसे जो ट्रेडर्स लोग हैं
सबसे ज्यादा निफ्टी में सौदा क्यों करते हैं? क्योंकि इस निफ्टी में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहती है। इट्स वेरी इजी टू डू। कॉल ले लिए, पुट ले लिए, जैसे आपको जो भी ट्रेड करना है, आपको मंदी का सौदा करना है तो निफ्टी में करते हो, तेजी का सौदा करते हो करना है तो निफ्टी में करते हो। लेकिन आप निफ्टी में इसलिए करते हो क्योंकि उसमें डेप्थ होती है, उसमें फड़ नहीं लगती है, आपके कॉस्ट ऑफ वो आपका ट्रेड नहीं लगता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग। अब एफ आई आई इज री रेटेड द इंडियन मार्केट। उनको लगा कि साला जब देखो तो 2 लाख करोड़ की माल बेच दे, और उसके बाद कोई पॉलिटिकल एक्शन नहीं हुआ, कोई शॉर्ट सेलिंग बैन नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल हम लोग के ऊपर विच हंटिंग नहीं हुई। नहीं तो पहले क्या होता था, आप इतना बड़ा माल बेच देते थे, शॉर्ट सेलिंग हो जाती थी, पॉलिटिक उसके ऊपर पी नोट्स की इंक्वायरी हो जाती थी, ऐसी कुछ भी नहीं हुई। सो FII नाउ आर वेरी रिलैक्स लॉट। उनको लगता है कि ठीक है, इंडियन मार्केट इज गेटिंग मेच्योर, हम पैसा डाल सकते हैं। हमने 2 लाख करोड़ रुपया निकाला है, तो हम लोग 4 लाख करोड़ रुपया डालेंगे, जिसका आपने ट्रेलर ये मंथ में आपने देखा था कि एक महीने में 55,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हो गई। अब 55,000 करोड़ की अगर बाइंग होगी और कोई अगर शॉर्ट करता है, तो ऑब्वियसली आप एक राजधानी एक्सप्रेस के सामने खड़े हो रेलवे लाइन पे, और वो आपको लेके जाता है। सो दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंडली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो म्यूचुअल फंड्स के पैसे हैं, जो डोमेस्टिक मनी है, वो कहीं रुका नहीं है। वो पैसे आ ही रहे थे, और वो इट मे टेपर ऑफ, बट अगेन इट विल पिक अप विद द पिकिंग ऑफ द मार्केट। द मार्केट इज बैक टू द 60,000 जोन। 1,000 पॉइंट इधर उधर आप बोल सकते हो, विद द लेस एकदम मिनिमलिस्टिक थिंग। एंड सबसे बड़ी बात है कि FI की जो सेलिंग है, बाइंग है, दैट इज कमिंग बैक टू द मार्केट विच इज प्रोवाइडिंग यू द मच नीडेड कवर। तो ये सारी चीजें हो गई है। एंड सेकेंडली आप एक चीज देखो, जो US डॉलर का इंडेक्स है 108 हो गया, मतलब दैट इज अ 20 ईयर हाई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है US डॉलर लास्ट 20 ईयर्स में, एज पर द US डॉलर इंडेक्स। एंड उसके बाद भी इंडियन करेंसी इज परफॉर्मिंग मच बेटर। इंडियन करेंसी के जो हम लोग ने कोई रेट्स भी ज्यादा बढ़ाए नहीं है। आज भी हमारा 7.18 है जीसेक रेट। तो उनका अगर 3.25% है, तो विच इज जस्ट 4% का डिफरेंशियल में है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मॉर्गेज रेट्स आज भी हमारे हमारे 8% है, तो उनके 6.5-7% है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हाउसिंग मॉर्गेज रेट्स। सो वी हैव एक्चुअली काफी वो जो डिस्टेंस से कवर कर लिए, जो पहले 4% 5% रहता था, आज वो 1.5% में आ गया है। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, इफ यू वांट टू सी द पॉजिटिव थिंग इन द मार्केट, यू नीड टू सी। और भाव प्रधान है, आप शॉर्ट कर दीजिए। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं रॉन्ग तो हो रहे हो। तो दैट इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू caution my friends who are planning to short selling the market। एंड जब सबको लगता है कि मंदी होने वाली है, वो कभी मंदी नहीं होती है। सो दैट इज वन थिंग। वो भी एक है कि कंसेंसस कभी भी राइट नहीं होता है, कंसेंसस ऑलवेज गो रॉन्ग। सो वन थिंग इन द स्टॉक मार्केट विच आई हैव लर्नड इन लास्ट सो मेनी इयर्स। सो I थैंक can यू। reply, Rishi bhai. हाँ प्लीज आप रिप्लाई कीजिए, थैंक यू। You are saying short sell uh, ban nahi hai. There is a ban. Nobody can short sell. In India, no FII can short sell the index or the stock futures. Okay. Secondly, you might perceive that there is growth. I might perceive there is no growth because vehicle sales are stagnant for 5-6 years. So I don't see any growth. And apart from that, if there is a growth or no growth, stock market is a different animal. 17 months ago, do you mean to say there was no growth? Do you mean to say in 2018 there was no growth? There was much more than what it is now. But the appetite for shares have gone up. Lot of inflow of domestic and FIs have come. So the prices have gone up. Now my argument is not Teji mandi. My argument is about valuations. That if you buy any stock at say 50 PE, what's the point? If you are a rational investor, why will you buy? And another thing I want to say, in a country where indigo,
with so much of negative net worth is quoting at 70 or 80,000 crores. Jet Airways is no business. It's 120 rupees. NDTV, I don't know what. So my limited point is, Rishi bhai, कि I'm not against India or anything. Please, मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर रह चुका हूँ, बहुत कुछ किया है लाइफ में. आई एम नॉट एंटी इंडिया. आई एम एंटी रबिश स्टॉक मार्केट. ये क्या तरीका है क्या? ये क्या तरीका है? नो राइम और रीजन और बढ़ता है, नो राइम और रीजन बाजार घट जाता है. ये बाजार नहीं है यार. बाजार ऐसा होता है. और आपके आने के पहले मैंने बोला था कि देर आर very good shares. One should invest in them to earn super normal profits. But people are stuck with some common names, and there you cannot create wealth. And believe me, Rishi bhai, a 2021 के पहले India was always a market to shop. In 1990, in 2017 or 18, we came out with a rule. No FII, Sandeep bhai हाथ नीचा करो. We came out with a rule that no FI can short sell futures, please. And during uh, uh, Corona time, we completely banned short selling and index also not more than 2 lakhs or 3 lakhs. That is why you see there is no change in open interest. वो 1,10,000, अरे 1,10,00,000 रहता है, 12,000, अरे 12 लाख होता है, 7 लाख होता है, उधर ही वो घूमता है. And see, I play with my money. हाँ, another thing, I short. My shorting tactic is I buy a call. So never ever I'm in a problem. It's a hedge trade. And if you are not doing it, if you are long and you don't buy a put, you should do it. There are 2, 3 reasons why you should do it. First of all, the margin reduces drastically. And secondly, the system automatically squares up your time, or rather, the stop loss is in the system. So whether I short Adani Enterprise, say 20,000, I don't care because there is a stop loss. वो 5,000 होएगा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Only to give you an example, I don't play Adani. और आपने ये बोला ना, तो आई थिंक 10-15 दिन पहले मैंने बोला था अडानी लेना चाहिए. तो अभी यार ट्रेडर है, कभी लिया कभी बेचा. आप ऋषि भाई एक बात को याद क्यों रखते हो? नहीं नहीं शरद भाई, हम लोग काफी दिनों के बाद बात कर रहे हैं. मेरा जब बात हुआ था उस समय थोड़ा मंदी था, 53-54,000 का इंडेक्स होगा उस अरे समय जब आप बात कर अरे रहे थे. सर, मैं क्या नहीं नहीं, बोलता हूँ? उस समय की बात होगी, 1-1.5 महीना पहले की बात होगी. मैं नहीं अभी नहीं, 15 दिन से देखिए आपसे बात देखिए, ही नहीं किया. नहीं नहीं एंड ऋषि भाई. सेकेंडली सर, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ. आप जैसे इंडिगो का एग्जांपल दिए, आपने बोला कि इंडिगो का मार्केट कैप इतना हाई क्यों है. तो आपके लिए हो सकता है 77,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको लगे कि ये वर्थ नहीं है बाइंग करने का, कि लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी लॉस कर रही है, तो क्यों ले. लेकिन हो सकता है कोई दूसरा इन्वेस्टर ये देख रहा होगा कि मैं $10 बिलियन में आज मुझे पूरा का पूरा 60% ऑफ इंडियन एविएशन मार्केट मिल रहा है, विच इज ग्रोइंग एट एक्सपोनेंशियल रेट. एंड सेकेंडली, आज इनके पास प्राइसिंग पावर भी आ गई है. अब वो कैप ऐप भी हट गया है प्राइसिंग का. आप कुछ भी भाव में आप
टिकट बेच सकते हो, तो वो एक रकम से एक प्रॉफिट मार्जिन भी आ जाएगी। तो वो उस माइंडसेट से इंडिगो खरीदेगा कि भैया मैं आज इंडिगो खरीद रहा हूँ 2000 में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंपनी के पास 60% का अरे मार्केट शेयर है इंडिया के पास। बागरी साहब, 2 महीने पहले 1500 का भाव हो गया था। ये चलता रहता है, बट द टर्मिनल वैल्यू आई टेल यू इज 700 रुपीज। मार्क माई वर्ड्स, आज नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, लेकिन 700 का भाव आएगा आएगा आएगा। अपने एक एक चाय की शरत हो गई। मैं हार जाऊंगा तो कलकत्ता आ जाऊंगा, आप आ जाओगे तो बॉम्बे आ जाना। ठीक है सर, लेकिन आपको एक टाइम फ्रेम तो देना पड़ेगा ना सर, कि अगर आप 700 रुपया बोल रहे हो तो एक एक आपके हिसाब से एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए कि आप 6 महीना बोल रहे हो, 1 साल बोल रहे हो, तब अपने वो टाइम फ्रेम के हिसाब से सर हारेंगे या जीतेंगे। तो वही मैं आपको बोल रहा ऋषि हूँ, सर टाइम फ्रेम आप भी के एक साथ आप बात करिए। ऋषि आप भी एक अपसाइड का टाइम फ्रेम और टारगेट दो ना, फिर मैं आप जहाँ जो भी शर्त नहीं, जीतेगा मैं भी आ जाऊंगा। मैं तो सबको अपसाइड का टारगेट दिया था। इनफैक्ट मैं तो अपने स्पेसेस में जब घोर मंदी चल रही थी तब आई वाज द वन हु सेड कि मार्केट लुक्स गुड, अभी इस भाव में लेना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन इज नो मोर अ वरी, द वरी विल शिफ्ट टू द ग्रोथ, एंड जब ग्रोथ पे वरी आएगी और जब जैसे फेड ये बोलने लग गया कि विल सी द डेटा एंड एज पर द डेटा वील कम बैक, एंड हॉकी स्टैंड भी अभी इनको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जिस हिसाब से वो चाह रहे थे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, तो वो डराना चाहते थे कि जितना डरे तब क्रूड जल्दी से जल्दी आए। दे वांट टू डू इट विद इन दिस ईयर सो दैट वो नेक्स्ट ईयर वो मिड, ये जो आपका मिड उनका जो इलेक्शन है, उनका एक मिड टर्म इलेक्शन होता है जिसमें काफी स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिड टर्म 2022 में यूपी इन्वॉल्व हुए थे, 5-6 स्टेट हो जाते हैं, तो वैसे उनका भी एक मिड टर्म इलेक्शन होता है जिसमें काफी मेजर मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो काफी बड़ा उनका एक वो इम्पोर्टेंट दशा और दिशा तय करता है। तो फेड इज इन हरी, दैट इज द रीजन इट वांट्स टू ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, बट उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा। आप देखो ना कितना जल्दी निफ्टी ने श्रग ऑफ कर दिया। मतलब आप सोचो कल जो मार्केट घटा, मतलब ओपन में गैप डाउन खुला, उसके बाद से तो मार्केट ने ऑलमोस्ट आज का अगर आप देखो और कल का आप ऐड करते हो, कल का वो गैप डाउन में भी काफी बड़ा कवरिंग आया था, तो उसको भी ऐड करते हो तो इट्स ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट जो कि मतलब कवर हो गया एक रकम से। ऋषि भाई, आप जो बोलते हो ना कि मेरा ध्यान मंदी है, ये वो है, और मेरे को लगता ही है सब, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो पोर्टफोलियो अपनी अलग जगह पे है, व्यू होना एक अलग जगह पे है, आप समझे? ऐसा नहीं कि हर शेयर अच्छा है और हर शेयर बुरा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और भाई साहब, मैं बता दूं आपको, 2019 तक ये 700 रुपया ही था इंडिगो। ओके, एनीवे। चलिए चलो भाई, कोई बात नहीं। आप टाइम फ्रेम देते तो अच्छा रहता, तब पता चलता कि कौन हारा है, कौन जीता है, कौन किसको चाय पिलाएगा, और कोई बात नहीं था। थैंक यू। नहीं नहीं, आई एडमिट आई लॉस्ट, नो प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू। नितिन भाई। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मार्केट सर आज तो लगता है कि शॉर्ट स्क्वीज किया गया है डेलिबरेटली, और ये नया फिन निफ्टी का नया एक्चुअली आज एक देखने को मिल रहा है, लगता है लोग उसमें काफी घुसे हैं और वहां ट्रैपिंग हुआ है। इसलिए आज आप देखोगे तो 6 शेयर ही सिर्फ बैंक निफ्टी के चले हैं और 6-7 शेयर निफ्टी के चले हैं। और आप देख ही रहे हो अब आज एक चीज बड़ी लोगों ने शायद इग्नोर करी, अदानी नहीं चला बिल्कुल आज, और डबल टॉप बनाया उसने। तो मैं तो अदानी को देख रहा हूँ ठोकने के लिए 3275 का स्टॉप लॉस लेकर, क्योंकि उसने 1 घंटे के बाद तो पूरा दिन माल दिया ही है। अब आई डोंट नो वेदर इट इज अ साइन टू फॉर थिंग्स टू कम। अगर आप कहते हो कि स्मार्ट मनी है, तो मेरे ख्याल से जो अदानी का स्टॉक ले रहा है वही सबसे स्मार्ट है आज के टाइम पे। तो भाव 100 रुपए से 3,000 रुपए कर रखा है, लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो आज वो पूरी तेजी में माल देके गया। आप देखेंगे अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज। अब अगर कल परसों अगर भाव नीचे चलना शुरू हुआ तो 3275 का स्टॉप लॉस लेकर, कोई बड़ी बात नहीं, रिवर्सल यहाँ से बन जाए और शायद कुछ न्यूज भी आ जाए, आई डोंट नो। निफ्टी तो सर आप जैसे सही कह रहे हैं मैनिपुलेशन चल रहा है, बट क्या करें अब, वो अनफॉर्चुनेटली इट इज ऑल अबाउट पोजीशनिंग कैसी है
लोगों को ट्रैपिंग भी हो रहा है, तो निफ्टी तो अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अगर लोग आज खेलते हैं तो उनको काफी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिला है। स्टॉक्स तो आज चले ही नहीं, जो टेप पढ़ता है, स्क्रीन देखता है, उसको तो आज अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे सर समर्थ सर भी बता रहे थे डीएक्सवाई ब्रेकआउट की रेंज पे है, तो और ब्लो अप का तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्लो अप बहुत मेजर होने वाला है। आई डोंट नो 100% कमोडिटी भाग गई और 10-20% नीचे आ जाए तो क्या हम उसको डिफ्लेशन कहेंगे? मेरे को तो लगता नहीं कि वो डिफ्लेशन कहलाता है। प्रॉब्लम आने वाला है अभी अगले 1-2 महीने में बहुत मेजर। और इतना बड़ा मूव जो हिस्ट्री अगर आप देखोगे सर, आपको तो सर जैसे पता ही है, हिस्ट्री देखती जो इतना बड़ा शॉर्ट स्क्वीज होता है तो वो बड़े फॉल से पहले ही क्लीन आउट करने के लिए होता है कि लोगों के अंदर डर बिठा दिया जाए शॉर्टिंग के लिए और उनका पैसा खत्म कर दिया जाए। बस स्टॉप लॉस लगा के आपको खेलना पड़ेगा और आपको बचना पड़ेगा। अगर कि लॉन्ग का तो बनता नहीं अभी इस लेवल पे, तो कोई रीजनिंग है ही नहीं। सारी थ्योरीज और ये सब नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं, जब माल देने पे आएंगे तो ये रुकेंगे नहीं। फिर कल दिया जैसे तो देते ही चले जाएंगे वो। अभी तो अब रिडेम्पशन आएगा जब अमेरिका डाउन जाना शुरू करेगा तो प्रेशर तो बनेगा फंड मैनेजर्स पे, अपने आप सेलिंग होगा सर शुरू उधर। आई थिंक सो इट्स अ गुड टाइम टू जस्ट स्टे एंड आप सेक्टर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे शॉर्टिंग के लिए। आईटी ग्लोबल रिलेटेड सेक्टर्स पे आप नजर रखनी पड़ेगी, वो पहले टूटेंगे। डोमेस्टिक से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि वहां पर उनका कोई लेना देना है नहीं बाहर की मंदी से। आईटी जाएगा सबसे पहले, मेटल जाएगा, उसके बाद फिर बैंक्स का नंबर लगेगा क्योंकि वो कोलैटरल डैमेज में आएंगे। बैंक्स की सेलिंग, बैंक्स पे सेलिंग बनेगी जब एफआईआई माल ठोकना शुरू करेंगे, तो बस क्योंकि उनके पास ही है सारा होल्डिंग, तो वो गेम बनेगा। उसका सिग्नल का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी तेजी पे आप तेजी जहां आती है स्टॉप लॉस लगा के ठोकना। अदानी बहुत बड़ा सर, मेरे ख्याल से अदानी सिग्नल देगा पूरी मार्केट का रुख क्या है आगे। अदानी का टॉप आउट सिग्नल आने लगा ना अगर, तो बस गेम खत्म है। सबसे पहले अदानी ही जाएगा। आज पूरे दिन माल दिया उसने, एकदम दबा के माल दिया। 4-5 घंटे वो लगातार बेचता ही रहा कोई, जबकि निफ्टी दौड़ता रहा। ये अदानी पोर्ट और इसमें तो एफ&ओ में बहुत आज सेलिंग हुई है। डबल टॉप क्रिएट हुआ है एक्चुअली आज उसके अंदर। ओके 2500। जी सर, थैंक यू। ओके सर, ओके सर। संदीप भाई आप बहुत अटेंशन, आप बोल लो, चलो संदीप भाई। Thank you, Sharad bhai. Attention aim was not to get attention, but aim was, I was concurring with what Nitin was saying. चलिए बोलिए। Thank you, Sharad bhai. There are two scenarios which is operating right now. There is clearly demand being created. Now, this is an artificial demand that is getting created to pump up things. Number one. Number two is reason पिछले 8-9 महीने से we have seen the level of relentless selling by FIIs and by other players, which was deeply ingrained into the Indian retailer psyche. Those Indian retailer घुस रहा था मार्केट में because of their 1 billion dollar selling by FIIs. Those were the deterrents. Now, to avoid those deterrents and bring back retailers into the market, टेम्पररी आप देख रहे हो कितना फास्ट अप मूव आया है विदाउट एनी ग्राउंड, विदाउट एनी राइम और रीजन. नाउ दिस इज गेटिंग पम्प्ड अप, देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट. डिमांड, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी जा रही है फॉर ऑल द स्टॉक्स. एंड इफ यू लुक एट, आई वेरी फर्मली बिलीव इन द परीटो. तो अगर देखा जाए विद दिस, किसी का भी पोर्टफोलियो, एटलीस्ट माय पोर्टफोलियो which I sold off at 18,000 or 17,900 levels last year, are nowhere close to giving me that level of percentage today. वो अभी भी माइल्ड रेड में बॉर्डरिंग ग्रीन हो रहे हैं. सो आर्टिफिशियल डिमांड इज गेटिंग क्रिएटेड टू एंटाइस रिटेलर्स ahead of December. Why I say December targets are because December is where winters would kick in the west. Natural gas prices natural gas prices cooled off yesterday or day before yesterday because it spiked up very heavily. Now, if you look at, Rishi Bagri, sir was saying that, inflation is cooling down. There is no reason or rhyme that inflation is cooling down. West is experiencing the highest level of inflations at an unprecedented level.
in the Europe, in particularly talking of in Europe, in UK, they are experiencing very, very severe inflation. You know, the standard of living is actually going down. A B is, you know, sorry. So the point is, inflation तो अभी start हुआ ही नहीं है. Inflation की तो worries छुपाई जा रही हैं. Real inflation will come in January, where the winters would kick in and actually gas supply from Russia to Western. यार वो सब रशिया छोड़ो ना, इंडिया का बात करो ना यार. तो सर इंडिया में अभी एट द मिनट देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है टू एक्साइट एंड ब्रिंग इन मोर रिटेलर्स एंड that story. वो कोई एक्साइट नहीं होता आजकल. सब लोग होशियार बन गए. अभी पंपिंग चल रही है सर, पंपिंग हो रही है एंड देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट कि अक्टूबर के बाद देयर वुड बी डंपिंग वुड स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर एंड till that point of time there is definitely pumping. The reason for pumping or bringing in that money is to wipe away the stigma or this of recessionary fear or the bears. क्योंकि 2-3 महीना अगर वो इसलिए sideways consolidation के नाम पे अगर 17,500 के लेवल पे भी रखते हैं और 18,000 टच करते हैं, many people would be excited to put in a lot of money, and that's where the sharp selling would come in only after the corpus is filled. Talking very general, it doesn't help us in any way. यार कुछ बताओ ना यार, कुछ बताओ जो हम नहीं जानते हैं. वो अक्टूबर में होगा, सितंबर में होगा, नवंबर. जानते तो मतलब एवरीथिंग इज मोस्टली इन पब्लिक डोमेन. आप जानते का क्या है? ट्राइंग टू से मेक अ वैलिड पॉइंट कि वो कुछ आर्ग्यू कर सके, समझ सके. नहीं सर, from that perspective, I don't want to get into debate. I just wanted to present my views. Didn't want to excite or attract attention towards this. अटेंशन का बात नहीं है मेरे दोस्त. वो विंटर आने वाला है, सबको मालूम है. एक छोटे आदमी को मालूम है कि यूरोप में विंटर आएगा, तकलीफ होएगी. So what? But markets are different. Inflation would be severe then, sir. That's what I'm saying. Inflation would kick up then, and that's where all this pumping, dumping would be forgotten, and people would be on a selling frenzy. तब तक आपको पब्लिक को और जनता को ये भुलाना है कि all this with these kind of rallies that came in today with in the pretext of good GDP numbers getting presented out, or GST collection reaching all-time high, or auto sales now lining up. Everybody knows there is a chip crisis. Everybody knows there is a freight logistics crisis. Everybody knows metals में क्या issues चल रहे हैं. तो issues चल रहे हैं, but those are all, everything is getting sidelined at the minute. Index is being managed. I'll not say manipulated. Index is being managed because that's the only thing that is available. That is the only thing that can show okay, India is shining. Right. Deepak? सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू. समझ सर का मैसेज था कि उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उनको कोस्ट में से हटाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की आपको. हाँ. दीपक भाई बोलिए. दीपक. दीपक नॉट देयर. नितिन भाई आपका हो गया? हेलो. Yes, sir, I'm done, sir. Okay. दीपक भाई. चलो. कारा भाई. Yes, good evening, everyone. Yes. So point I wanted to make is when this corona crash happened in 2020, it almost wiped off 6 years of gains.
And anybody who had bought at the peak or near the peak of the 2007-8 rally was sitting with only 20% gains. So again in 2018-19, if you look at it, Nifty's P ratio was considered overvalued. It had reached levels of 28, 29, and historically Nifty P ratio had never gone above 25. So that's the problem with investing in these overvalued situations. 80% of the stocks are overvalued. 20% may not be. Those companies might be genuinely growing very fast, and in another 2-3 years, they could double, triple. But if you're putting in a lot of money in the market right now, there is a good chance you'll get stuck with a lot of overvalued shares. The market may not fall today or in September or October. It may, we don't know. But whenever it happens, it's going to wipe off years and years of gains in those overvalued stocks. So yeah, you can buy something now, right now. You can buy Asian Paints or whatever. It will go up 10%, 15%, but one day it will be 50% down. So you have to be in this market. If you are investing, you have to be very very stock specific. मेरे पास अभी सिर्फ मेरा जो इन्वेस्टिंग का अकाउंट है उसमें 6 ही स्टॉक है मेरे पास. वो भी बहुत सोच समझ के मैंने उसमें पैसा डाला है आफ्टर जेन्युइनली रिसर्चिंग द कंपनी, नॉट जस्ट लुकिंग एट चार्ट्स एंड सेइंग इसका ब्रेकआउट होएगा, अब ये यहाँ जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट. So you have to be a very very wise investor in these kind of markets. It's not a bad time to put in money into very good companies where you see potential of very high growth, but just refrain from investing in these overvalued companies and you'll be good. I mean, it's not a bad time to sit on cash. Sometimes you have to wait very patiently for the markets to come down to the correct levels. I personally had exited from the markets in 2019 when it was at 10,800, 11,000 levels. And then the market rallied some 20% from there. And then you had that corporate tax cut, and there was a big green candle, 700-point rally in Nifty. And, I thought I had missed out on a great opportunity and markets are never going to fall. But I just waited patiently. The market still seemed overvalued to me. And, I got an opportunity later to put my money in. It's the same situation now. I have exited out from all my investments, which I think are overvalued now. Okay. They can go up from here, but I'll have no regrets. I will wait for them to come back to decent valuations and then I'll continue with my investments. So, yeah, that's all I had to say, Sharad sir. Actually, any time is a good time to buy good shares. Okay. There is nothing that you shouldn't buy at 17,500 or 19,000 or 15,000. Any time is a good time to buy good shares. That's the point I want to make. Okay. Over to Mr. Anant Acharya. सर होस्ट बना दीजिए प्लीज सर, अगेन यू कैन प्लीज. गुड इवनिंग. Good पोस्ट evening. क्या पोस्ट बना रहे हो भाई? Now just wanted to say a few things. Today's rally has been extremely surprising. Probably nobody even thought about it or even imagined or dreamt about it. And it is quite a surprising thing which has happened. And in almost 39 years that I've been following markets, I have never seen a decline of 2%, which is followed by a 3% rally. It has happened before, but all of them have been bear market rallies. Now let's look at it in a larger perspective. If you go back to just a week back, on 19th August or 18th August, we were much higher than what we are today. So we fell down a week and then it has rallied just to retrace or test that earlier breakdown point. Why is it that everyone suddenly has got into a framework or in the frame of mind that the correction is over and we are going up to new highs? I still do not see that happening.
Will it happen? Let it post a new higher high before we even start talking about this being a fantastic market to buy. The chart, the patterns are telling you it is a series of lower lows and lower highs. So why is everybody jumping the gun every time? Secondly, it would be very surprising. The whole world markets are down and India is the only shining one. Doesn't happen. We are a very small market compared to all of them. In the larger scheme of things, it is very unlikely to happen. And what I'm seeing, tomorrow is a holiday. Day after tomorrow, we could retrace the entire gain that we have had today to post lower lows. And I still maintain my view. 1400 to 14,200 लगाने से पहले ये मार्केट नया हाई नहीं लगा सकता. That's it. Without being categorical that ऐसा नहीं होगा ना ये हो. मेरा व्यू है. सुनो अब अगर सुन ले. लगा दिया तो बदल देते हैं. मैं तेरे बीच में बोला नहीं. तो मेरे को बोलने दे. बोलो बोलो ऐसा बोलो. बोलना 14,000 होएगा बस. ठीक है. वो कैविएट क्यों लगाता है? ठीक है, हटा दिए कैविएट. दोस्त, जो भी करने का है ना लाइफ में, दिल खोल के करो, किंतु परंतु मत करो. खुले आम करो. हम बोलते हैं ना, अभी भी बोलते हैं 12,000 होएगा और मन में तो और नीचा लोअर लेवल है. ठीक है, 15 महीना रॉन्ग हो गया, क्या हो गया? वो जिंदगी तो खत्म नहीं हुई मेरी. उल्टा वेल्थ बढ़ा ही है मेरा. तो बोलो आनंद भाई, और क्या बोलते हो? और कुछ नहीं. दिस market is very surprising these days. Look at what is happening in the international ones. So can India do a new high? Very unlikely. Very unlikely. Just because Yeah. one day we have a 400-point rally doesn't really make a summer. No, Anand, you were not there when I said we imbibe a lot of nationalism and patriotism in stock market. Correct. That is the reason that we have this sporadic rallies. Like, it's, I don't understand if you are a keen lover of India, why would you buy shares at inflated rates? Now, valuation is a very scientific game. तुम इधर कुछ भी ले लेते 80-90 पी. व्हाट नॉनसेंस यार. कब तक चलेगा? और आनंद भाई, मैं इतना साल बाजार में रहा. 84 से लेके 77 में सट्टा करता था. अननेचुरल होता है ना. जस्ट वेट. नेचर इज वेरी पावरफुल. इट विल डू द वर्क. कुछ रीजन आएगा. आई डोंट नो व्हाट. और जैसे अभी सब डाउ जोन्स वगैरह डाउन है, तो क्या इंडिया इंडिया कर रहा है? क्या एचडीएफसी बैंक कितना ले लेगा? आईसीआईसीआई बैंक कितना ले लेगा? ये सब नॉनसेंस है. बजाज फाइनेंस ओ 300 रुपया. क्या है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? चलो, एनीवे, दैट्स दैट. वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज. Yes, I am with you. और कुछ बोलना है तेरे को, आनंद? और कुछ नहीं, बस. थैंक यू. हाँ, at close of the day today I went short. Okay, thank you. I was short in the opening. I shorted in the afternoon, and I shorted in the end also. Okay. So I'm not so smart like you.
There is nobody smart here. Market's the smartest. Huh? Good one, good one, good one, good one, good one. Okay. Okay. Our trading D, बोलिए. Good evening, everyone. Good evening. Sir, my view on index is same. From the last view, I'll start. From 18,000, I was having short view, which I exited around the low we made around No, on no. Monday. भाई And then साहब, from now, भाई साहब, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, हमको इंटरेस्ट नहीं है. अगर आप आपका प्रॉफिट में से हमको शेयर देते हो, तो बताओ. खाम मत बताओ. ठीक है सर. So, sir, the gap down we had yesterday, it was not expected by Indian market as per me, because Dow Jones went down and we were closed at that time. So that can be the reason that we pulled up around those levels where we closed, or maybe a bit more short covering above that, right? So from now, my view is that we may go down now a bit as SGX is showing, and we may again rise around 18,000 somewhere. We may again fall down, and below this 17,000 or 200, there can be a sharp fall. So first, I have to see that how it acts around 17,000 or 200. This is my short view for next 2, 3, 4, 5 days. That's it, sir. Thank you. सौरभ, बोलिए. हेलो. हाँ, बोलिए ना. हेलो. आवाज आ रहा है? एकदम आ रहा है, जोर में आ रहा है. हाँ सर, मेरा तो व्यू आपके इनलाइन ही है कि निफ्टी हैज टू कम डाउन बिकॉज ऑल द स्टॉक्स आर ओवर स्ट्रेच. बट प्रॉब्लम है कि सिंगापुर से इन्फ्लोज आ रहे हैं. सो आई वर्क इन द फॉरेक्स मार्केट. आई कैन सी कि सिंगापुर के फंड से बहुत सारा इन्फ्लोज आया है. जब से शक्तिकांता दास सिंगापुर जाके आए हैं, तब से आई कैन सी जून जुलाई एंड से मार्केट्स में कंटिन्यूअसली इन्फ्लोज लगे पड़े. सो यू विल सी कि यूएसडी आईएनआर भी ट्राइड टू क्रॉस 80 लेवल्स, बट इट अगेन फेल्ड टू क्रॉस, एंड अगेन आज भी जबरदस्त सेलिंग होके 40 पैसा स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गए रूपी. तो ओवरऑल आपका वो तो व्यू है बेरिश? सॉरी, वो तो मंथ एंड के लिए किया था. एक्चुअली वो तो है, बट रोज का भी इन्फ्लोज लगे पड़े हैं क्योंकि 80 के ऊपर वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है यूएसडी आईएनआर. सो ओवरऑल मैंने जैसे लास्ट पेसिस में भी बोला था कि यूरो और जीबी अपना यूरो विल ट्रेड बिलो यूएसडी आईएनआर. सो इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो यूएसडी आईएनआर. सो यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर में ज्यादा वीकनेस है, बट ट्रेडिंग प्रॉब्लम है की कि आप डॉलर नोट भी करो. उतना ही वीक है. हेलो. हाँ, बोलिए बोलिए. हाँ, वही कि जैसे लास्ट पेसिस मैंने भी आपको ये इसमें बोला था कि यूरो और जीबीपी दोनों ज्यादा वीक होने वाले हैं यूएसडी आईएनआर से. बट यूरो आईएनआर तो बहुत नीचे आ गए. यू कैन सी यूरो आईएनआर इज ट्रेडिंग अराउंड 79, 760, 50 का लो लगा के आया है ऊपर. तो ओवरऑल आउटलुक बेरिश ही है निफ्टी का, बट इट माइट टेक लाइक जैन मंथ टू रियलाइज दैट कि इट हैज गॉन अप टू मच. अभी तो 2-3 महीने के लिए तो बुल रन बाकी रहेगा जब तक इन्फ्लोज है, बिकॉज आई कैन सी कि सिंगापुर से बहुत ज्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं मार्केट में. तो उसी के कारण बाकी अडानी बिडानी जबरदस्त उसमें बारूद भर चुका है. अभी तक जब तक वो बारूद फटेगा तो उसको टाइम लगेगा. और इफ यू ऑब्जर्व कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने सब एक्सपोर्ट्स बंद किए हैं कमोडिटी एग्री कमोडिटीज के बारे में. सो एक ऐसा माहौल है कि आगे वाले 6 महीने में फूड क्राइसिस आने वाले हैं. फूड शॉर्टेज जैसे कंडक्टर का शॉर्टेजेस था. सो यू विल सी अ सेम काइंड ऑफ शॉर्टेजेस कमिंग इन नेक्स्ट 6 मंथ. तो ऐसा है. सो इट विल टेक टाइम टू टेक इफेक्ट. बट यूएसडी आईएनआर का वही है, इट माइट गो टू 75 ऑल्सो. स्ट्रॉन्ग हो सकता है करेंसी यूएसडी आईएनआर का, क्योंकि अभी जेपी मॉर्गन ने भी आज इन्फ्लोज लाए हैं बॉन्ड में. और आई थिंक इंडिया माइट बी इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स. दैट्स इट सर. ओके, थैंक यू. और बोलो मोहम्मद भाई, बोलिए आप कुछ. समर्थ, यस सर. गुड इवनिंग सर. बोलो कुछ. बोलो सर बोलो. बस अभी तो
200 points SGX minus है, but main thing is the movement of USD 2 year, 10 year and 30 year. वहां पर मूवमेंट है और बॉन्ड मार्केट हमेशा ओवरऑल अपना जो मार्केट है 10 year का वो 7.16 पे क्लोज हुआ है, बट दैट ऑल्सो विल मूव अप ऑन मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक में उसमें भी मूवमेंट आएगा, बिकॉज अभी जो है यूएस में जो मूवमेंट बॉन्ड मार्केट में हो रहा है उसकी वजह से ही इक्विटी मार्केट इज राइट नाउ रिएक्टिंग टू दैट. So on a longer time frame, this is negative for equities overall, sir. But जो कैपिटुलेशन होना चाहिए यूएस मार्केट का अपने मार्केट से वो भी हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ भी जो नेचुरल मार्केट के ऊपर चल रहा है मार्केट, जो सेंटिमेंट के ऊपर नहीं चलता है. जैसे आपने बोला ना कि भाई इंडियननेस और जो स्वदेशी में आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई वो इक्विटी बाय करते हैं, तो इट इज एक्चुअली साइन ऑफ इंडियननेस. तो वो सब वहां पर नहीं है सर. वहां पर जेन्युइनली जो मार्केट में खराब रिजल्ट आता है वो शॉर्ट होता है और उनका प्राइस भी डाउन मूव होता है. यहाँ पर अगर रिजल्ट खराब आया तो मार्केट में 10% ऊपर जाता है मार्केट भाव. तो वहां पर उल्टा है. जो सही तरह से होना चाहिए जेन्युइनली जो मार्केट है वो अभी यूएस का मार्केट है ओवरऑल. तो उसकी वजह से अभी मूवमेंट आएगा सर, थोड़ा देरी से आएगा, बट मूवमेंट डाउन साइड में जरूर आएगा. दैट इज माय व्यू सर. एंड करेंसी विल मूव सर. यस सर. समर्थ एक मिनट, अभी याद आया. अपने वहां जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको इकोनॉमिक समझता ही नहीं है. दैट इज माय क्लेम. उनको ना कुछ आइडिया है ना कुछ पता है. एक ही चीज पता है, क्या लेने का, क्यों लेने का नहीं मालूम. तो I would say Indian market is the most stupidest market. There is no realm of reality in it. सब hogwash मेरे को लगा. क्यों लगा मालूम नहीं. मेरी माँ ने सुबह में दही दिया मेरे को, इसके लिए आज शेयर लूंगा. I would say there is no connection between economics, reality, facts, figures, nothing. हवा में ही उड़ता है अपना मार्केट, हवा में ही रहेगा. And for all other purpose, I would be surprised if Dow Jones goes down to 20,000 and our Nifty goes to up to 40,000. It can happen. It's very much possible. Looking at these idiots buying every day. हाँ बोलो अभिषेक. Sir, I was just talking to third side, around 7 o'clock in the evening, I was talking to third side. तो he was telling me कि 25% का जो आउटपरफॉर्मेंस हुआ है in 2008 वो वापस होने का चांस है. तो 25 already we are outperforming the Dow Jones by about 12% as of now. तो 25% बोले तो even if Dow Jones stays where it is, we will head towards 18, 500, 600 whatever the level is. उतना तक जाएगा अपना. But the most intriguing part for me was today actually. कि सब कुछ गंदा है, सब गंदा है, फिर भी लेके जा रहे हैं. तो it's not when, it's about कब होगा, बोल के वही है. And one more important thing that I want to talk about is, अरे छोड़ो सर, जाने दो. I don't want to talk about it. Leave it. Sainik sir and everyone is trolling me very very badly. He thinks they are the gods because markets are in their favor, and they think the markets will be disconnected forever from the global markets. I don't know how long it's gonna last. एक मिनट. Yes sir. ये ट्रोलिंग बोलिंग से काहे को डरता है? डरने का है नहीं वो है, डरने का नहीं है. तो फिर बोलो ना, जो बोलने का है बोलो ना. हाँ सर, मैं बोलता हूँ. हाँ सर. क्या तो घबराता है यार? यस सर, मैं बोलता हूँ ना अभी. ये बोलता है कि डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स ऑल टुगेदर, अपना मार्केट जाने वाला है ऊपर. तो मैं पूछा थर्ड साइड को, मैं थर्ड साइड से पूछा कितना जाने वाला है करके. तो वो बोलता है 25 तक का जाएगा. आउट परफॉर्मेंस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड 2008. तो 25 तक का बोलते भी 18,500 600 तक जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट डाउ जोन्स के हिसाब से. तो अपन ऑलरेडी 10-12% ऊपर है.
तो वो बोलता है कि नहीं, ये तो भाई हमारा बुल मार्केट है, अभी तो ये चाइना वाइना का पूरा धंधा खत्म हो गया, तो सारा के सारा जो धंधा है वो अपने पास ही आएगा। केमिकल्स का हुआ या इलेक्ट्रिकल्स का हुआ, सब कुछ डिक्सन जाएगा, 5,000 6,000 10,000 जाएगा डिक्सन। और ये जो बाकी जो स्टॉक्स है वो सब जाएंगे, सब जाएंगे। इन्फी विन्फी को तो चले जाएंगे, जितना भाग जाने वाले खतरनाक वाला, वैसे बोलते हैं। तो तो ठीक है अभी यार, अरे जिसके पास एक शेयर नहीं है वो बोलेगा उसे क्या होएगा, छोड़ो ना यार। जिसके पास एक शेयर नहीं है सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो छोड़ो यार वो एलॉन मस्क निफ्टी को मार्स में भेज देगा। बिल्कुल सही बात है। अरे मैं तो क्या बोलता हूँ, जब तक ये जो अदानी है ना, until becomes number 1 in the world, तब तक बेचने का निफ्टी को। आज तो नंबर 3 है, नंबर 1 हो जाने दो, उसके बाद बेचने का निफ्टी को। नहीं, मजाक बोल अभी रहे थे, सर, अभी मार्केट में two to three mutual funds have come up with a yes offer, mutual fund new fund offer, NFO आए हैं। उसमें बेसिकली फंडामेंटली आप देखोगे ना कुछ भी, तो they have come up with this balance advantage fund, तो उनको भी लगता है कि that is the right approach for investment at the current juncture, because balance advantage fund में they can move from debt to equity and equity to debt, तो वहां पर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं फंड मैनेजमेंट। तो अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का 2 साल के बाद आया, उनका जो डिबिकल हुआ था 2020 में, ये डीएसपी का जो बॉन्ड था, अपना डीएचएफएल के जो बॉन्ड थे, उसमें जो डिबिकल आया, तो उसके बाद 2 साल के बाद उसका न्यू फंड ऑफर आया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, तो उसमें भी सेम फंडामेंटल से आया है। They will invest in bonds and equities as and when they feel to invest in it. They can manipulate both ways. मिर्ची लाना, मिर्ची का चाल बोलो। विशाल भाई आया है, विशाल भाई को स्पीकर दिया है सर, रिक्वेस्ट। हाँ डॉक्टर अमित बोलो ना। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बहुत आ रही है। ओके, तो अभी टॉपिक तो जो है गौर तेजी या मंदी, मैं तो मंदी में ही हूँ, क्योंकि उसके काफ़ी वजह भी है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं काफ़ी एनालिसिस किया कि पास्ट में ऐसा कब हो चुका है। तो जो ये हाई डी कोरेलेट हो गया है अपना मार्केट, तो मैं 2008 का एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ। काफ़ी बार हो चुका है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम डेविएशन काफ़ी होता है। तो 2008 अक्टूबर में डाउन जोन्स S&P जो इंडेक्स है वो 4% फॉल हुई थी अक्टूबर 2007, और अपना निफ्टी उसी टाइम पे 70% चढ़ा था। उसके बाद नवंबर में कुछ माइनर करेक्शन हुआ था, और जनवरी तक हमारा जो डेविएशन था वो करीबन 21% था। मीन्स हम आवाज आ रही है सर? हाँ। तो जो डेविएशन 21% चला गया था जनवरी तक, मीन्स दिसंबर आप ले लो तो, और यूएसए तो कंटिन्यू जनवरी से कंटिन्यू फॉल कर रहा था। और जब जनवरी का क्लोजिंग बेसिस पे हम देखते हैं S&P और निफ्टी, तो हमारी निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 16% फॉल हुई थी, और डाउन जोन्स 4% करीब, S&P 4% करीबन था। तो वहां पे हम अलाइन हो चुके थे फिर। तो ये काफी बार हो चुका है। तो मगर ये रेयर इवेंट होती है, इतना बड़ा जो डेविएशन में देख रहा हूँ। अभी S&P ऑल टाइम हाई से 20% अप्रोक्सीमेट डाउन है, और हम करीबन 5% करीब, उससे भी शायद कम हो गए अभी फ्यूचर का देखे तो।
तो सूनर और लेटर ये होने वाला है। तो और एक चीज और टर्न अराउंड हुई है। डेविएशन का रीजन मुझे लगता है कि हम इंडियन पीपल लेट समझते हैं शायद। जो मैसेज फ्राइडे को पोवेल ने दे दिया है कि कुछ भी हो जाए हम इन्फ्लेशन से फाइट करेंगे, और वो मैसेज अब तक कोई सीरियस नहीं ले रहा था, क्योंकि 12 साल से ये चल रहा है कि ऑलवेज रिसेशन पे इंटरेस्ट रेट साइकिल लोअर होती है और सेंट्रल बैंक मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा सिनारियो डिफरेंट है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन से फाइट करना है और इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए मार्केट को डाउन करना ही पड़ेगा, वरना पास्ट में ऐसा कोई हिस्ट्री में एविडेंस नहीं है कि आपका मार्केट बढ़ता जाए और इन्फ्लेशन डाउन होता जाए। और एक तो पहली चीज, इन्फ्लेशन बहुत रेयर इवेंट है। मींस आप 100 ईयर का डेटा सैंपल लोगे तो इतना हायर इन्फ्लेशन कभी कभी आता है। तो वो जो ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, 10 साल से जो होता है ट्रेडर, उनको नहीं पता होता 90-80 में क्या हुआ था। तो ये सब रहता है। तो आई थिंक ये अलाइनमेंट होगा और बहुत जल्द होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी लिक्विडिटी ड्राई है, तो वो लिक्विडिटी ड्राई में अगर कुछ भी पैनिक होता है तो हम बहुत फास्ट जाएंगे। यहाँ पे वहाँ पे 2 महीने डिविएशन रहा था। वहाँ सिनारियो 2008 का वेरिएबल काफ़ी अलग था, यहाँ अलग है। अभी अभी तो ये लिक्विडिटी इतनी ड्राई है तो 5 मिनट में भी 3-4% चला जाता है। तो और दूसरी चीज़ के यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी देख लो सर आप। तो 5% शायद आप गेन ले लो, मगर 35% लूज करने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लास्ट टाइम हम न्यू आइल पे थे अक्टूबर 2021। वहाँ से आप मैक्रो देख लो, टेक्निकल देख लो, कोई भी पैरामीटर पे आप देख लो, इन्वेस्टमेंट जो समझते हैं। सो वी आर वेरी बेड सेफ एट नाउ। क्रूड वहाँ पे 2021 में 84 था, डॉलर इंडेक्स 94 पे था। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था नहीं वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। यूरोप की सिचुएशन देख रहे हैं, वहाँ पे क्राइसिस, एनर्जी और ये सब चल रहा है, जियो पॉलिटिक, एवरी पैरामीटर। तो वही सब देखते, जो प्रोबेबिलिटी हम देखते, तो इट इज़ वेरी हाई रिस्क अपर साइड टू रिमेन, बेटर टू स्टे आउट or go for the short. That is all, sir. Mr. Bagri said that the US government wants the markets to go up. I did not recollect at that time. US government desperately wants the markets to go down, not up. He's mistaken. And Dr. Amit, Yes, sir. you had said about iron ore being quoting below 100. Below 100, sir. 2018 के लोअर पे चल रहा है। लास्ट जो पीक था, ये कमोडिटी जो मेटल कमोडिटी है, उनका 2008 पे पीक, 18 पे पीक था। तो उससे भी नीचे चला। आयरन ओर ले लो, यूएस स्टील ले लो, इवन कॉपर यू कैन सी इट इज करेक्टेड मोर देन 14% फॉर टॉप. So, except the crude, that might be different thing. All the commodity we see the major correction. And to continue this correction in commodity, you have to dry the liquidity. वरना क्या हो रहा है, एक एसेट जो लिक्विडिटी पंप हुई है अभी तक क्या थी, वो लिक्विडिटी एक एसेट से दूसरी एसेट में जा रही थी, कभी बॉन्ड से इक्विटी, इक्विटी की कमोडिटी। तो उसी वजह से सेंट्रल बैंक आर अनकंफर्टेबल। तो अभी उन्होंने मैसेज दे दिया, क्योंकि लास्ट मीटिंग के बाद भी अगर मार्केट बढ़ रहा है, दैट मीन्स लिक्विडिटी इज स्टिल सर्कुलेटिंग। तो हमने देखा कि ये जो बिफोर द फ्राइडे ऑल द कमोडिटी आर राइजिंग, एंड सो दैट्स व्हाई आई थिंक सेंट्रल बैंक आर अनकंफर्टेबल कि सपोज के बॉन्ड में से अगर कमोडिटी में चली गई तो हाउ दे आर फाइट। तो वही मैसेज दिया उन्होंने कि हम अब करने जा रहे हैं स्ट्रिक लिक्विडिटी, मींस व्हाट एवर द मीन, उनको क्रैश करना ही पड़ेगा मार्केट। ये लिक्विडिटी ड्राई तभी होगी कि मार्केट में से पैनिक हो, सबको बाय करने में पेन लगे, तभी ये इन्फ्लेशन, आई थिंक, मे बी, आई डोंट नो,
रॉन्ग, मगर ये मेरी सोच है। विदाउट इन्फ्लेशन ऐसे तो होगा ही नहीं। बॉन्ड में अभी इतना सारा मींस ब्लड बाथ हुआ है, तो वो मनी अगर कॉमोडिटी में चला गया तो इन्फ्लेशन कैसे डाउन होगा? एक ही कॉमोडिटी अगर क्रूड में भी चला गया तो क्या होगा सर? नहीं, ये जो आप बोला ना, मेरे को भी लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को माल बेचना चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट ठंडा करेगा, ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन पे असर आएगा। सही है अभी सर। आप पूछिएगा कैसे न क्यों, बट आएगा, 100% आएगा। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। नहीं तो ये जो नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में इन्फ्लेशन आएगा ना, गवर्नमेंट को खतरा हो जाएगा। कॉमोडिटी सर, सॉरी सॉरी सर एक और पॉइंट है। कॉमोडिटी को जब तक कंजम्पशन और इंडस्ट्री आइटम तक देखी जाती है तब तक इन्फ्लेशन नहीं आता, मगर जब इसको एसेट की तरह लोगों इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तब ये इन्फ्लेशन आता है। तो ये 2018 के 18 टॉप से जब कॉमोडिटी गिरी थी तो वहां से फिर इन्फ्लेशन नहीं था, क्योंकि आप मेटल के स्टॉक देख लो या कॉमोडिटी देख लो, ये आयन और वहीं पे था 90 अराउंड वो ट्रेड हो रहा था। मगर ये जब ये लिक्विडिटी 2020 पे आई तो द एक्स्ट्रा मनी दे आर चेजिंग द एवरी एसेट, नॉट ओनली इक्विटी। आप देख लो हर एक जगह पे, तो वहां पे ये साइकिल स्टार्ट हो हेलो। जाता है। और सॉरी, हाँ बोलो। हाँ, तो वही साइकिल वहां पे स्टार्ट हो गया। और ये इन्फ्लेशन, वरना 10 साल से इन्फ्लेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉमोडिटी को कोई एसेट क्लास पे देख ही नहीं रहा था। सो आई मीन्स ये मेरी सोच थी सर, जो मैं रखना चाहता था। नहीं, ऐसा है ना, ये जितना बैलेंस शीट एक्सपांड हुआ यूएस गवर्नमेंट का, यस सर। 9-10 ट्रिलियन, उसका पहले तो आया ये अपने अरब स्प्रिंग, वो जो इजिप्ट में हुआ वगैरह, और तूफान हुए सब जगह पे, लॉट ऑफ अनरेस्ट एंड ऑल दैट। और ये ज्यादा पैसा बहुत तकलीफ लाया। अब जाके वो लोग समझा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गया है। सो नाउ दे आर curtailing. The government of US is also wanting the markets to go down. Come what may, the markets will not go up. I'm talking about US. India is a different story. India is a different story. बोलिए। बस ये फ्राइडे को सेंट्रल बैंक ने सर मैसेज दे दिया, आप 180 डिग्री मूव जाओ अपनी डायरेक्शन से। यूएस वाले समझ गए हैं, देखते हैं हम वाले कब समझते हैं। वहां तो हो गया 180 डिग्री, वो लोग 42 4200 एसएनपी से कंटिन्यू वो फॉल है, और हमारा अलग है। देखते हैं कब तक हम समझते हैं, और शायद मे बी समथिंग डिफरेंट, वी डू नॉट नो, आई डोंट नो, मगर the probability is very high it will be fall, very speedy and sharp. Yeah. Okay, thank you sir. एक कोने planet or something. Hello. Am I बोलिए। audible? Yeah. Yes. Yeah. So I have been hearing this conversation for very long, and I would like to add some points. मतलब मैं काफ़ी सारे लोगों के व्यू सुन रहा था, तो कोई बोल रहा था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बेसिकली इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि कोई भी मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो कोई बेच भी रहा है ना, और जो बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, तो दोनों के पास ही दिमाग है और दोनों के पास इक्वली लॉजिक है। तो सितंबर में ऊपर जाएगा या मई में नीचे आएगा, उससे पैसा तो बनना नहीं है। दीज ऑल आर जस्ट गॉसिप। पैसा बनना है रिस्क मैनेजमेंट से या ट्रेड मैनेजमेंट से। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेकआउट भी बोल रहे हो, पर आप अगर टाइम फ्रेम नहीं बता रहे हो कि वो ब्रेकआउट 1 आवर पे ब्रेकआउट है या 5 मिनट पे ब्रेकआउट है, वो जो आप बियर या फॉल की बात कर रहे हो फ्राइडे को, हो सकता है वो एक फॉल हो, या हो सकता है वो एक लार्जर टाइम फ्रेम पर एक रिट्रेसमेंट हो। अगर कोई और बंदा है वो केवल 100 क्वांटिटी में जाकर 300 पॉइंट कैप्चर करके भी 30,000 कमा सकता है, और मैं 10,000 क्वांटिटी डाल के उस रिट्रेसमेंट का 30 पॉइंट पकड़ के भी 3 लाख कमा सकता हूँ।
तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज ये सब बातें या न्यूज़ सुन के ना एक्चुअली अपना दिमाग और कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि अगर आपका कोई व्यू है, अगर आप बुल हो तो भी पैसा बनाओगे, बियर हो तो भी पैसा बनाओगे, अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मार्केट का किसी भी तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी 40 से 60% के बीच में ही होता है। क्योंकि आप सोचो ना, अगर आज ऊपर गया है तो किसी ने तो बेचा है ना, और ये एफआई और डीआईओ के पास हजारों लोगों की टीम बैठी है, वो लोग बेवकूफ नहीं है कि वो लोग खरीद रहे हैं। क्योंकि वो खरीदेंगे तभी जब कोई बेचेगा, और जो बेच रहा है वो भी बेवकूफ नहीं है। तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज है, आपका पोजीशन साइज प्रॉपरली मैनेज है, तो आप जीतोगे ही जीतोगे ना। इट इज लाइक अ कसिनो। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर 40% है, आप अगर 10 ट्रेड भी लोगे, और अगर आपका 1:2 है, तो अल्टीमेटली मैथमेटिकली जो इक्वेशन है वो आपके फेवर में है, आप पैसा बनाते चले जाओगे। देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप कितने बड़े ट्रेड ले पाते हो। जितनी छोटी टाइम फ्रेम पे होगे उतने ज़्यादा ट्रेड ले पाओगे। जो कंसेप्ट होता है HFT का, हाई फ्रिक्वेंसी जो ट्रेडिंग करते हैं, आई रन अ प्रॉप डेस्क। तो मैंने इतनी देर से जो मैं बातें सुन रहा हूँ, मुझे आई वॉज फीलिंग इट्स लाइक वेरी फनी। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या फर्क पड़ता है। हम में से किसी के पास भी 1,000 करोड़ तो है नहीं कि हम उसको मार्केट को ऊपर लेके आ सकते हैं। अगर नीचे जा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट हो गया, तो उसको सेल कर देना, क्योंकि उसका सेकंड लेग बनने ही बनना है। जब भी ब्रेकआउट होता है उसका एक हमेशा सेकंड लेग आते ही आता है। उसका रीजन है कि ज्यादातर लोग जो अभी सोच रहे हैं मार्केट ऊपर गया है, 90% लोग अब चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए। और जो लोग ट्रैप हो अगर मान लो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, वो लोग आज हो गए होंगे ट्रैप। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा वो लोग अपनी पोजीशन कट करेंगे, इस वजह से सेकंड लेग बनेगा ही बनेगा इसका, भले वो कितना भी छोटा बने। तो भाई आप साहब, भाई साहब, बहुत सुन लिया आपका। आप कितने साल से बाजार में हो भाई? सर मैं करीब 8 से 10 साल से हूँ। ओके। मतलब आई एम सॉरी सर, मेरा एज आपसे काफी कम है, एंड आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, बट नहीं मुझे ऐसा नहीं, लगता है। नो 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 नो, यू लिसन, यू आर ऑफेंडिंग एवरीबडी कि ये सब फालतू का बात है। नो 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 सर, नो नो, व्हाट यू आई सेड इट, यू नो नो, सेड, यू सेड कि ये क्या बात है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो क्या बात करेगा? क्योंकि सर आप खुद ही सोचिए ना, अरे अगर ऊपर पर मैं बोलता हूँ ये स्पेस पे क्या बात करेगा? बेसिकली, कि नया धूप अच्छी है, ये है वो है। नहीं 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 नो 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 कम नो, ऑन दिस इज यार। नॉट व्हाट आई मेंट सर। व्हाट आई मेंट कि अगर हम No, लोग यहाँ पर but you रिस्क, said it. You must not have meant it, but you said it in as many words. नो सर, Please नो don't सर, berate us. नो नो You सर, might be somebody big, I don't know. My portfolio is also huge, hundreds of crores. So, how does it matter my portfolio? Here I am just an ordinary person. We are सर here बिकॉज, together to learn something and not सर advise सर कि आप लोग क्या बात करते हो। सर ओके, एनीवे, लेकिन चलो आप बोलिए। लर्निंग और, यस सर सर, यू आर वेरी राइट, लेकिन लर्निंग और नॉइज में बहुत फर्क होता है। अगर आप इतना नॉइज सुनेंगे ना, तो आप जब चलो अच्छा हुआ, चलो। रैंडम गाय। हाँ, हेलो, ओके, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रहा है। थैंक यू समर जी एंड थैंक यू शरद जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे शरद सर से क्वेश्चंस थे थोड़े। थोड़े, हाँ बोलो। हाँ सर, पहला क्वेश्चन था मेरा, ये प्रोमोटर्स के प्लेज्ड शेयर्स जो रहते हैं उससे रिलेटेड था। हाँ बोलिए। सो ये प्रोमोटर्स जब अपने शेयर्स प्लेज करते हैं, कोई बैंक को देते और उस पे लोन मिलता है उन्हें, तो फिर वो शेयर्स एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट रहता है उसमें, जिसमें एक प्राइस रहता है। तो अगर वो प्राइस टच होता है या ट्रिगर होता है, तो उसके बाद वो बैंक्स वो प्लेज शेयर्स सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो यस, क्या ये जो डेटा है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को पता होता है? अनऑफिशियली यस, ऑफिशियली ओके, नो। सो उससे रिलेटेड मेरा एक कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन था, अगर उनको ये पता होता है तो ये बैंक्स जो होते हैं, तो वो बैंक्स ये शेयर्स मार्केट ऑर्डर्स पे पूरा एक साथ ही पूरा सेल कर देते हैं अगर वो प्राइस ट्रिगर हुआ तो? इट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक ओके, एंड द रिलेशन ऑफ द promoter with the bankers. ओके,
हाँ, थैंक यू सर। और मुझे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, बस मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। हाँ पूछो, आराम से पूछो, जल्दी क्यों भाई, आराम से। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन था, सो फ्रॉम the last 40 years you have been in the market, what are some of the biggest lessons you have learned from some of your biggest profits and some of your biggest losses so far? See, biggest learning is you should never sell good shares. You should never sell good shares. Okay. And another thing about my losses, I think the speculative instinct should be minimal in any human being. Speculation brings you down. Speculation, if done once in a way, it's okay. But if you do it day in, day out, you are doomed. All your wealth will go away. Whosoever does this, whosoever, including me or a Kara, or if they do speculation day in and day out, mark my words, end result will be you will be without shares, house, or whatever. So, humble request, please trade very less. Okay, Please sir. trade when you understand things. बोल और क्या पूछना है रैंडम? थैंक यू सर। सर एकदम फाइनल क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही मैं पूछता हूँ। सर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो आपको अगर नहीं आंसर करना है तो आप नहीं भी अवॉइड कर सकते हो। आई टोटली रिस्पेक्ट इट। सो माय फाइनल क्वेश्चन इज, do you have any memories or any interesting facts or the history do you share with the late Manu Manik ji? Yes, I have. Could you share some of your interesting facts or No, history with him? it's very long, and I used to interact with him a lot, like on a daily basis. ओह ओके, नहीं कुछ भी इंटरेस्टिंग, अगर कुछ भी अगर आपको उनके। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, he was a normal guy, just like you and I. Nothing. Please, he was ओके a broker. He was not a trader. He was a broker. He used to do transactions for other people. ओके, Yeah, he was not a trader himself. बोलो। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू Okay. सो मच। या डॉक्टर अमित, आपको कुछ कहना था क्या? नहीं, वो अभी जो डेटा का ये क्वेश्चन था ना, प्लेज और सब, तो बस एक ही इनपुट देना था कि एनएससी पब्लिश इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा, वहाँ पे काफ़ी डिटेल मिल जाती है, कौन कंपनी ने प्लेस किया, किस पर्पज पे किया वो नहीं मिलती, मगर कोई भी कंपनी प्लेस इनसाइडर में सब कुछ आ जाता है, तो वो थोड़ी एग्जामिन करता रहे तो उनको डिटेल मिलेगी कि कहाँ से मिलेगी। उनका क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं था, यही ऐड करना। नहीं, डॉक्टर यस साहब, सर, यस सर। एक बात है, मेरे जैसा रखो ना, इंफॉर्मेशन ही नहीं चाहिए मेरे। सही है सर, सही है सर। क्या इन्वेस्ट के लिए, सी अभी स्पेकुलेशन में ठीक है यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, स्टॉप ओके लॉस सर। लग गया, वो सब ठीक है, बट इन्वेस्ट करने के लिए व्हाई डू यू नीड दैट इंफॉर्मेशन? इफ यू सही है आर सर। बाइंग अ कंपनी से, सपोज लाइक वेस्ट लाइफ, 600 क्या भाव है माल, 640 होगा, अभी लेके रख दो ना, का वो प्लेज करता है या भूखमरी करता है, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली 1200, 1500, 2000 होएगा। तो देर इज नो पॉइंट इन लुकिंग एट एनीथिंग, डॉक्टर साहब। यू यस सर, आर गॉट इट सर। you are just cramping your brains with lot of unnecessary information. चलो एक कंपनी ने प्लेज कर दिया, क्या कर लोगे तुम? नहीं सर, मुझे तो नहीं बस नहीं, करना। नॉट यू, ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? उसका शेयर उसने प्लेज किया, अपने क्यों मगजमारी करने का? ना अपने लेंडर है ना कुछ है। सो
I'm requesting everybody, don't go into unwanted information. Keep it very simple, very, very simple. And believe me, you will make lots of money by that way. ये ऐसा हुआ, फिर ये किया, आज काम है रोज बढ़ना या घटना। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं। अभी तुम काय को मगजमारी करता है? ब्रॉड व्यू डिस्कस करो। ऐसा हो सकता है 12,000 होएगा, ये डिस्कस करो। रोज का रोज तो अभी आज 400 बढ़ गया, कल 500 घट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? विशाल भाई अभी मैं थक गया, आप बोलो। सर एक एक क्वेश्चन पूछना था विशाल भाई, एक एक मिनट। सर एसएलबीएम में सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है? एसएलबीएम में एसएलबीएम में तो कोई भी अच्छा है। नहीं सर, आईसीआईसीआई direct.com डज नॉट डू दैट थिंग। तो अरे यार, कोई भी ब्रोकर के वहां आप कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है सर। एनीबॉडी कैन डू इट। आपको करने का अभी मैं करता हूँ, बोलो ना। नहीं, मैं करता हूँ सर, आपको डायरेक्ट में कॉन्टेक्ट सर। ओके, हाँ विशाल भाई बोलिए ना। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं? अरे मजे में भाई, मजे में। ओके। उस दिन यार मेरे से फौपा हो गया था कि थोड़ा स्ट्रांग लिख दिया। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के आप बड़े हो सर, क्या उसमें क्या बात है सर। बोलिए बोलिए। नथिंग नथिंग, ऐसा क्या सर। मेरे से मैं भी सर नॉर्मली डालता नहीं हूँ, बट आई शेयर द रीजन विद यू पर्सनली जब यू, नो प्रॉब्लम वी टॉक। तो सर मार्केट्स एक्चुअली सबके समझ के बाहर है, एंड इवेंचुअली बात यह है कि सर प्राइस जो है वही भगवान है। तो आई मीन टुडे इट वाज नॉट एंटिसिपेटेड बाय, आई थिंक नो वन एंटिसिपेटेड देयर वुड बी अ 400 500 पॉइंट मूव ऑन द निफ्टी, एंड sir, ये this is purely liquidity driven market which is being taken bought by probably FII। 4,000 करोड़ का सर बाइंग आज FII का फिगर आया है। आई मीन 4,000 करोड़ में 400 पॉइंट निफ्टी भाग जाता है, 500 पॉइंट निफ्टी भाग जाता है। तो वी आर इन अ वेरी हॉलो मार्केट राइट नाउ। टेक्निकल आई मीन स्ट्रक्चरली तो what happened day before yesterday after the Powell statement was wrong। आई मीन मार्केट गिरना चाहिए था, बट ऑब्वियस सी बात है, वो जो चीज ऑब्वियस होती है सबको लगता है कि मंदी होगा, तो मार्केट सरप्राइज एवरीवन ऑन द सरप्राइज साइड। सर बाकी ऑन द फंडामेंटल पीस जैसे डॉक्टर अमित भी बोल रहे थे, मेरा भी सर ये मानना है कि प्रॉब्ली वन वन मेजर प्रॉब्लम which we are seeing especially in US is there is for last 4 or 5 decades US citizens have been living in a inflation which was सब 2% 3%। तो अभी जो जनरेशन है सर, ऑल ऑफ अ सडन 10% का जब वो इन्फ्लेशन देखते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, एंड sudden and the inflation is going beyond control, so quite possible that one fine day surprisingly Fed comes up and does a so probably a Volcker effect, चाहे वो अर्ली 70s या 80s के अंदर सर वो अचानक से ही फेड ने 200 बेसिस पॉइंट 250 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर दिया था। तो वंस एंड फॉर ऑल एक ही बार में रोज रोज मरने से अच्छा एक ही बार में दे में जस्ट सक आउट अ ह्यूज लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। So that could actually shake up the entire global equity markets, global financial markets for that. विशाल विशाल विशाल, Yes sir। आपका एक कंटिन्यूएशन में बोलता हूँ। हाँ They जी सर। need not raise the rates too much. They have to do the QT. So automatically the liquidity will be sucked out. Yeah, go ahead.
Exactly. So, sir, so this is a major problem. I mean, any markets have discounted some rate hikes by US, but what if there is a surprise rate hike and a surprise QT, like you are saying? We could have a major financial tightening, and the global financial markets can go for a toss. So, so for me right now, we are enjoying. I'm enjoying the party and sitting out just near the door. तो ये बात है, अभी भाव भगवान है सर, तेजी हो रहा है तो कर रहे हैं तेजी, दैट इज इट. But overall, sir, looking at the fundamental things are actually going from bad to worse. And given that now, as the winter sets in, we may see the gas prices in Europe and US may go up like anything. So we that will again add up to inflation. लॉट ऑफ कंट्रीज के अंदर हाई प्राइसेस के ऊपर लोग जो है सड़कों पे उतर रहे हैं. तो आई मीन अरे इट्स वेरी इंडिया बैड. में नहीं होगा ना, हम्म. इंडिया में नहीं होगा. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. Sir, but we can how long can we be insulated from the global world? It is. फॉरएवर. तो जब फिर तक सर आप वो नहीं एक, तो चलोगे एक, तब तक क्या होगा? तो एक सर बात बोलते हैं. वो लॉजिक से सिर्फ बाय बाय बाय, आई मीन अदानी अदानी नंबर वन हो जाएगा, फिर अंबानी नंबर वन हो जाएगा, फिर 1 2 पे ये लोग खेलते रहेंगे. हाँ, डांडिया खेलेंगे. और एक बात है विशाल, जब आप बोलते हो ना भाव भगवान छे, हाँ जी सर. एट टाइम्स भाव बकवास है. एग्री करता हूँ सर, एग्री करता हाँ, हूँ. If it is way ahead of fundamentals, so obviously there has to be some sort of reasoning for the prices to be sky no, high or no, sky no. bottom. See, in normal markets, you say भाव भगवान छे, I agree with you. But in abnormal markets like us, now, to say भाव भगवान is stupidity. राइट भाव सर. बकवास छे. तो Anyway, विशाल भाई, कुछ रुक लाए हो क्या? सर रुख में अभी सर मंदी के अंदर कोई रुख है नहीं फिलहाल. तो अभी कोई कुछ नहीं. आई विल स्टे साइलेंट ऑन एनी व्यूज राइट नाउ. तो प्रॉब्ली फ्राइडे और नेक्स्ट बेसिस कुछ क्लैरिटी आता है तो देखते हैं सर. But sir, one stock on the buy side, I would definitely recommend is Tata Communication. It has been all throughout strong, even in the fall, and so वहाँ पे sir एक buy चल रहा है. We गुड are. गुड गुड गुड. अभिषेक कुछ बोलना है? सर आई वांटेड टू आस्क विशाल भाई, कहाँ तक लगता है बाजार ऊपर? भाई मेरे को कुछ नहीं लगता है यार. मेरे को तो ये देखना है मेरा लॉस कितना है बस. जितना जाएगा, जब रिवर्स करना होगा रिवर्स कर देंगे. सिंपल है. लेवल दे के कोई मतलब नहीं है. देखो, मेरे को अभी इस टाइम पे लेवल देने का मेरे को कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ना ऊपर का ना नीचे का राइट नाउ. So I would विशाल, avoid giving a level. विशाल, I don't know or don't remember the specific instance. वो हमारे वहाँ एक कहावत थी शेयर बाजार में, नजर हटी घटना घटी. बराबर है. बिल्कुल सर. नजर हटी घटना घटी. 2 बजे बाजार बंद हो रहा था उस टाइम. तो एक हमारा दोस्त था, इतना सुपर बुलिश था, इतना माल पोते था, बड़ा रुआब कर. मैं बोला यार इतना काय को करता है सौदा, मर जाएगा. बोलता है अपने बेच देंगे. मैं बोला बंद बाजार में आया खबर तो. एंड राइटफुली 3 बजे स्ट्राइक हो गया वो कंपनी में. तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज यू आर इन कंट्रोल between 9 o'clock and 3:30. Okay. But anything beyond that, you are not in control. Now, for example, if you had bought at 17,800 or 850 Nifty, saying 50 रुपए में मैं निकल जाऊंगा, और बंद हुआ 817,
तो अभी है 17,600। तो अंधेरे में जो होता है ना, उसका कंट्रोल नहीं है आपके पास कि मेरे पास। तो रैंडम सौदा नहीं करना चाहिए ओवरनाइट। हाँ, अगर आपने अंबुजा सीमेंट लिया है कि भाव 500 रुपया होएगा तो डरने का बात नहीं है, बट अदरवाइज रैंडम। आप बोलिए विशाल। नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन वही है ना कि लोग अगर इमोशन में आके अपना पोजीशन को ओवर लेके जाएंगे कि बाजार 500 पॉइंट बढ़ गया चलो और लेके जाते, इफ दे डोंट नो हाउ टू साइज देयर पोजीशन, तो सर अरे भगवान। विशाल भाई, अपने लोग अपना ही बात करते, दूसरों को तेल लगाने दो यार। बराबर बात है। वो तो कल मरता हुए तो आज मरे, अपने को क्या है यार। ना अपने को कोई चारा ना देने वाला है, ना अपने देने वाले हैं, तो क्यों फिकर करते हो। नहीं नहीं मौज सर, मस्ती कर। सर मौज मस्त। आपका एक बात हमेशा याद रहता आता है जब भी कुछ गलती करते हैं, शेयर बाजार में सब जायज है सर, ये सट्टा बाजार में सब जायज है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर कि वो कल का मरता आज मरे गलत है, तो हमने ठेका नहीं ले रखा है लोगों को समझाने का। बात तो सही है सर। नहीं, अभी मैं समझाने बैठू तो कम से कम 1-2 लाख ट्रेडर होंगे, तो किस किस को समझाऊं, सर किस किस को पकड़ूं। वो तो क्या है सर, तो अभी लोग एक एक ये 5 घंटे का लेते हैं 25-25 हजार रुपए सिखाने का। तो क्या है वो आप भी वेबिनार चालू कर दो, 2-3 लाख लोग ऐसे ही आ जाएंगे सर आपको सुनने के लिए। यू आर अ नहीं लीजेंड। मैं नहीं मैं क्या बोलता हूँ कि 1,00,000-2 लाख ट्रेडर होंगे रोज के, तो सबको मैं समझाऊं कि ऑप्शन बहुत बुरी चीज है। मरता है, रोज मरता है आदमी लोग। कितना अकाउंट बस्ट होता होगा रोज, कोई अंदाजा ही नहीं है। सर फिर स्क्रीनशॉट। हाँ बोलिए। सर आज का ही एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट लोगों ने डाला है, कोई कल कोई 5 करोड़ डाला, आज कोई 9 करोड़ डाल रहा है। आई मीन आई डोंट वांट पीपल नो, बट माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, व्हाई पीपल गेट कैरिड अवे विद सच काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट्स। एंड डेरिवेटिव मार्केट इज अ जीरो सम गेम। तो अगर कोई 5 करोड़ कमा रहा है तो सामने 5 करोड़ लोगों का 5 करोड़ नुकसान भी हुआ है, उतना लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट। तो ये क्या है कि डेरिवेटिव मार्केट अगेन इज अ जीरो सम मार्केट। तो ऑप्शन बेचो, ऑप्शन खरीदो, ये सब कसिनो चल रहा है। एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कसिनो इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन खेलो बेचो वो करने में। वो ओ चिंगू विशाल भाई वो जो 5 करोड़ वाला है वो 500 रुपए का कोर्स भी बेच रहा है। सर, वो कौन बेच रहा है क्या करना है उनको जाने दो सर, अभी चलो सिंपल जाने दो। जाने दो, लेट्स नॉट डिस्कस पीपल। नितिन भाई, आप कुछ बोलना चाहते थे। या थैंक यू सर। आई जस्ट वांटेड टू ऐड सर, अभी पहला स्टिमुलस जैसे आप सर राइटली कह रहे थे मनी विड्रॉल अभी सितंबर में उन्होंने शुरू करना है, 94 बिलियन जो विड्रॉल का है। और मार्क अभी तक तो उन्होंने $100 बिलियन भी विड्रॉ नहीं किया, 24 ट्रिलियन प्रिंट किया है उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर, सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। 9 ट्रिलियन तो जैसे सर आपने बताया यूएस ने किया है। अभी तो स्टार्ट होगा, और अभी का सर पैटर्न बिल्कुल 2007 के 2-3 महीने पहले जो क्रैश आया था नहीं जनवरी में। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप बहुत ही गलत हो। अच्छा सर। 2007-8 का जो किस्सा आप वो सुना रहे हो ना, जी सर। तो वो बहुत वो छोटा था। ओ गॉड, अच्छा सर। Hardly the balance sheet size was $500 billion. Hardly. वेरी ट्रू सर, सब वेरी ट्रू। सेंट्रल बैंक का मिला के अभी आप 20 ट्रिलियन पकड़ते हो, और उसमें समझो कि 20 करोड़ आदमी बढ़ गए होंगे टोटली ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कहाँ पे आप अभी 20 ट्रिलियन में से 10 ट्रिलियन निकालेगा, अपना क्या हालत होएगा सर। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। वही आई वांटेड टू हाईलाइट द सेम फैक्ट। अभी फेड के हाथ में क्या है कि क्रैश या तो अभी कराना है या इससे बड़ा क्रैश कराना है, यही दो सर, बस यही दो try and ऑप्शन है। understand one thing. जी सर। नवंबर में उधर मिड टर्म इलेक्शन है,
उधर वो लोग को मंदी चाहिए. The government wants the markets to go down because there is too much of hue and cry between the rich and the poor. The rich are richer and the poor are poor. It's only in Absolutely, India sir. that it's not happening. एब्सोल्युटली ट्रू सर, एब्सोल्युटली ट्रू सर. वही आई वांटेड टू हाईलाइट, जो कंटेजियन 2007 में भी ना यही बातें हो रही थी कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगा, जैसे अब राइटली पुट कर रहे हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट में बातें शुरू हो गई थी कि हमारे बैंक्स इंसुलेटेड हैं, फलाना ढिकामा. सेम चीज अभी वही मार्केट में प्ले आउट हो रही है. अभी मार्केट वाले वो बातें कर रहे हैं. कंटेजियन जब यहाँ आएगा, वहां 20 दिन में मेरे को याद है सर 6300 वाला Look, निफ्टी look, look, 4200 look. आ गया था. जी सर. नितिन भाई, मैं ये सब सुनना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से इधर के आदमी लोग इडियट है, बेवकूफ है. पूरा किस्सा खत्म होएगा, बाद में उठेंगे. ऐसे तो लोग हैं यहाँ पे. अरे रे रे, पता ही नहीं लगा कब मर गया. अरे जब जिंदा था तभी आने का था ना. तो sorry for the bad example, but what I'm trying to say is people don't understand. You ask anybody, वो सुबह में टीवी में वो कोई आएगा, ये निफ्टी ये ना वो. अरे क्या, what are you talking? Are you some journalist on TV talking about Nifty the whole day? What, yeah? Where are teach people? You see CNBC USA, how good it is. They debate. इधर कुछ नहीं. Okay, anyway. आनंद भाई कुछ बोलना है क्या तेरे? सर समझ स्पीकर पे नहीं है, आनंद भाई स्पीकर पे नहीं है. नहीं नहीं, मैंने इनवाइट किया है. नहीं, वापस आ गया. अब पीडी भाई को बोलने का मौका दो. दवा बाजार कैसा है बोलो. प्रणव भाई लीजिए. आनंद भाई बोलो. क्या बोले Malik? Right now the Dow is down 410 points. Compared to looking at the pattern, the Dow looks like it is heading much deeper. Correlation आएगा. पूरी बात सुन लो. पूरी बात सुन लो. नहीं 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 नहीं, तुम सुनो बात. Instead of talking about Nifty, we should only talk about Dow Jones share, because this is a stupidest index on the earth with no reasoning, no reality. Okay, go ahead, Anand. What I'm trying to say is, with the Dow down so much, with Europe looking at trouble and Europe also showing down, with Euro struggling to go beyond $1 level, with Asia being in rest of Asia being in such a big problem, today Taiwan has fired the first shot on the Chinese drones. All this is actually giving reason for the markets to go down. So just this one day, aaj ka jo hai, is should not be paid so much attention. We should actually think of what it was yesterday or what it was 2 days back. It was the same level. So what has happened? कल का और आज का भूल जाओ ना, तो हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ. आज भी डाउन ही है. 18,000 लगाया था, 17,700 लगाया, तो 300 पॉइंट तो डाउन ही है. सो दिस वन डेज मूवमेंट शुड नॉट alarm the bears so much, or it should not be viewed as a signal for a new high or a bull market. That is all. अरे क्या बात करता है. India is a great country. Car sales are high. So and so, so and so, so and so. तुम इंडिया को बेचने को बोलता है. Destroying nonsense. सर छोड़ के चला जाओ इंडिया, वापस चला जाओगा. अरे बॉस, मेरे को भी साथ में लेके जाओ.
अभी कौन से कंट्री में हो सर? Anand bhai, I think you should go to Pakistan now. No, I am in You are asking to sell India. I am in Tbilisi, Georgia. Straight, yeah. पीडी भाई बोलो. पीडी भाई. Evening, everybody. Good evening. Just one observation. I don't know how far and how long markets can be removed from reality. When, for a small trader like me, I'm talking about my medicine supply business. For a small trader like me, when a Nifty 50 listed pharma stock is offering me a 3% cash discount on my general terms of 60-day payments, if there is such a shortage of liquidity, I don't know how long markets can be removed from reality. Again, there is a very famous saying that markets can remain irrational longer than you can remain solvent. वो अलग बात है, but सर ये है थोड़ा थोड़ा orders have started picking up a little bit, but liquidity is still very very tight. I will not name the company, सर તમને खबर है कि किसके साथ मैं मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है बड़ी कंपनियों में in an Indian pharma company. If he is offering me a 3% discount straight away on 30-40 lakh rupee business on my normal credit terms of 60 days, there is something wrong somewhere. मतलब अगर एक बड़ी कंपनी का बंदा 30-40 लाख का ऑर्डर के लिए उसका नेशनल सेल्स मैनेजर मेरे जैसे लोगों की ऑफिस में भी आ जाता है, भले वो 15 मिनट दूर है मेरे से, लेकिन उसके डेस्क से खड़ा होके मेरी ऑफिस तक आता है चाय पीने को, there is something that says something, no, sir. I have to take it as a sign. True. Absolutely. पीडी भाई, वन क्वेश्चन. जैसे एबोट है और पीजीएचएल है, मर्क जो पुराना नाम था, तो आर दे कमिंग अप विद ड्रग्स फ्रॉम क्लोजली हेल्ड एंटिटी, और ये जो लिस्टेड एंटिटी है वहां से ड्रग लॉन्च कर रहे हैं अभी? लिस्टेड से करते हैं सर, क्योंकि अभी एक स्पेस में मैंने सुना था कि दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स लाइक उनकी जो अदर क्लोजली हेल्ड एंटिटी होती है इंडिया में, उनके थ्रू वो ड्रग लॉन्च करते हैं रेदर देन कमिंग अप विद. समर भाई, दैट इज ओनली सुपर स्पेशलिटी ड्रग्स और बायोसिमिलर्स जो डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में ही डायरेक्ट सप्लाई उनका हमारे जैसे डीलरों के हाथ में भी नहीं आता है वो माल. वो लोग के क्लोजली हेल्ड एंटिटी से डायरेक्ट हॉस्पिटल सप्लाई होता है बिकॉज दे वांट टू एस्केप द एनपीपीए, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी. इट इज नॉट वो लोग क्या करते हो, क्लोजली हेल्ड एंटिटी में इंपोर्ट दिखाते हैं and imported drugs, something that is not manufactured in India or something that is not classified under essential life saving drug, फिर उसके ऊपर एनपीपीए नहीं लगता है सर. तो ये बड़ा गेम है और उसमें खाली पीजीजीएच नहीं सर, उसमें एबट से लेके जाइडस वाले सारे इन्वॉल्व है जो बहुत सारा काम है. हाँ, बहुत सारा हाँ, और उनमें ऐसा है कि जो हॉस्पिटल का सप्लाई रहता है ना, वो उनका पूरा वर्टिकली अलग है. वो डीलर्स का अभी नहीं है. पहले इवन हॉस्पिटल्स यूज्ड टू कम टू डीलर्स टू बाय. नाउ ऑल कंपनीज आर स्टार्टेड डायरेक्टली सप्लाइंग टू हॉस्पिटल्स, स्पेशली हाई एंड प्रोडक्ट्स लाइक बायोसिमिलर्स. So that goes from their closely held entities. ओके. और कुछ नहीं सर, थैंक यू. Now trading D and fact finder. फैक्ट फाइंडर को रिक्वेस्ट भेजा है सर. अच्छा, और ट्रेडिंग डी बोलो. नहीं है ट्रेडिंग डी. आई थिंक FF will be somewhat busy, I suppose, because नहीं तो आ जाते हो. सिंगापुर निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है. अच्छा, 220 सर.
220। नहीं, अभी आ जाएंगे वो लेने को डीए। आज सिंगापुर में आ जाएंगे। एनीवे चलो, और कोई बस ये सर। बंद करे। यस सर, वी कैन। नहीं, तरुण भाई आए सर स्पीकर मोड पे। वाओ, तरुण भाई। हाँ जी, गुड इवनिंग अंकल, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, फाइन फाइन। बस अभी नया अपडेट आ रहा है, अपना सेल का बटन डिलीट कर दिया इंडिया से, सो यू कैन ओनली बाय। और मार्केट, अरे हाँ यार, इट्स अ गुड आइडिया। तो गिरने का तो चांस ही नहीं है ना जब सेल ही नहीं होगा, तो बस खरीदते रहो। और बाकी अपना मैं तो डाउ जोन्स वगैरह भी देखना बंद कर दिया है। हाँ, काम का ब्लड प्रेशर बढ़ाना। और ट्रेड अपना निफ्टी करते हैं तो डाउ जोन्स देख के क्या होगा। तो लॉन्ग ही होंगे। बस सिर्फ लॉन्ग, मैं तो ब्रोकर ने हटा ही दिया ना, सेल का बटन ही हटा दिया, आपको बता तो रहा हूँ। या तो बाय करो या विड्रॉ कर लो पैसे बस। So, other than that, I have no update as of now. तेजी चल रही है, क्रूड तेजी में की क्या बात लगता करते है? हैं। क्रूड क्रूड अगर गिरा तो हालत टाइट है। दुनिया की तो वैसे ही हालत टाइट है, इंडिया की तो मैं बात ही नहीं करता। इंडिया इज अ ग्रेट स्टोरी है तरुण। नो डाउट अबाउट दैट अंकल, नो डाउट अबाउट दैट। सर क्रूड गिरेगा तो निफ्टी और तेज होएगा ना। जबरदस्त, अरे इन्फ्लेशन कम हो रही है ना, 22,000 हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। बैंक निफ्टी 80,000। बस बस उसके बाद आगे देखेंगे ना। अरे भाई, मैं तो खैर अभी हाल फिलहाल तो डिक्शनरी से सारा वर्ड्स ही हटा दिए, शॉर्ट पुट्स। ये मंदी मंदी से बता दो भाई साहब, क्या बात बोली आपने। हाँ तरुण, जी वेरी ऑनेस्टली, जी, ये जो सब भाव है ना, हाँ जी, ये करंट रेट्स, what they signify is that dollar rupees 120, उसके ये भाव है। आई एग्री। No, हाँ, पर तेरे 120, but पास तो more than F1 ही है। 85, around 85, 90, yes. नहीं 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 नहीं, the way the stocks are priced, I'm saying. Yes. No, खैर anyway, आपके पास तो सेल का बटन है ही नहीं। क्या करूँ तो अभी, सोच सबका यही हाल होगा अंकल, सब बाय ही करेंगे। Either stay out or buy, you cannot sell. अरे भाई, मैं अदानी, ओके, मैं तो खरीदूंगा अदानी। हाँ हाँ, सबसे बढ़िया है पहला ना, खुद से खरीदूंगा अदानी। बढ़िया है। So that's it from my end. कुछ no, but तरुण, जी, तेरे हिसाब से बेस्ट बाई क्या हो सकता है? मजाक में या सीरियस में, ये बताओ। मजाक में बता, बाद में सीरियसली बता। मुझे तो अंकल एयरलाइंस बहुत पसंद है, इंडिगो। Okay. ग्रेट फंडामेंटल्स, 60% मार्केट शेयर, ग्रोथ स्टोरी। वो वॉरेन बफेट को कुछ नहीं पता, उसने कभी एयरलाइन में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो वो क्या जाने। ऐसे ही उसके नाम का हुआ है, असली पैसा तो नहीं, इंडिगो में इंडिगो है। में तो ऐसे भी लॉस ही है ना दोस्त। हाँ जी, इंडिगो में लॉसेस है, बुक वैल्यू नेगेटिव है। हाँ हाँ, बट सर यहाँ वो के लोगों को क्या जाने पता, और उनको तो सर वो जाने दीजिए, क्रूड 6% नीचे गिर गया आज। इंडिगो को प्रॉफिट होएगा अभी। कल प्रॉफिट। जाने दीजिए सर, वो नेगेटिव है तो क्या हुआ। अब बोलिए, और सीरियसली क्या अच्छा लगता है? दारू, सुट्टा, QSR, गुड, ओनली दीज एग्री। 3।
वैसे तो आइडियली तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी लिस्ट होना चाहिए था, बट कोई नहीं, तब तक इसी से ही काम मजा आ चलाते हैं। गया सुन के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज तरुण भाई अलग ही मूड में है सर। लगता है दीपक डाउन है। Fact finder, where are you? Trading D. अरे तरुण भाई और Trading बोलिए D. ना, तरुण भाई और बोलिए ना, मजा आ रहा है। हाँ, तरुण भाई तरुण कॉल भाई, पे एनर्जी। तरुण भाई हमारे जैसे के लिए भी तो कुछ तो बोलिए। हम ना दारू वाला शेयर लेते, ना सुट्टा वाला लेते, ना QSR नॉनवेज वाला लेते, तो हम क्या करें? तेल ले लो, तेल। खुद को जला लेंगे। कुछ तो जलेगा, कुछ तो जलेगा। अरे यार भगवान। आप अदानी लीजिए बस। बस मतलब मार ही डालोगे। अरे अदानी विल्मर अभी तक भागा नहीं है, ले लो उसको। अदानी ग्रुप का वही एक स्टॉक नहीं भागा है, उसको ले लो। अभी वो कॉनकोर चलेगा क्योंकि अदानी पोर्ट ले लेगा उसको। बाजार में 4 साल से रूमर चल रहा है, उसको ले लो। अरे भारती और वैसे भी भारती क्या ले लो, है उसका। अदानी खरीद लेगा। भारती ले लो, अदानी खरीद लेगा। अब मेरे पास में ना 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, 12 उस सब में अडानी को इंटरेस्ट है। अभी मैं भी नड़ गया, मैं बोला जा, नहीं देगा तेरे, उखाड़ ले जो भी। तो वो पॉलिटिकल ताकत ये वो लगा रहा है, बट मैं नहीं दूंगा उसको। मेरा इतना बड़ा वेल्थ है, कैसे दे दूं उसको। एनीवे, आइडिया को बेच दो, आइडिया को, वोडाफोन आइडिया को बेच दो। हाँ वोडाफोन आइडिया, क्या? वोडाफोन आइडिया। हाँ नहीं, वो लेने वाले हैं। वो जो लाइसेंस लिया है ना, हाँ। 150 करोड़ में, वो इसमें डालेगा। अरे ये अपने एजियो हंट को ले ना लाइन पे, वो बहुत बकबक करता है, मंदी मंदी पूरा टाइम। एजियो हंट बोलो। 1 मिनट सर। पूरा टाइम मंदी मंदी करता है एजियो, क्या तो करता है। नहीं लिया, नहीं भेजा सर रिक्वेस्ट। और सर एक तो अपन डेटा पॉइंट को डिस्कस ही नहीं किए सर। हाँ कौन सा? अरे सर इतना सब खाने पीने के ऊपर अभी वो जीएसटी लग गया, तो सर जीएसटी का कलेक्शन तो अभी 2.5-3 लाख करोड़ रुपए होने लगेगा हर महीने का। अरे तो हाँ इससे यार, वो हाउ कैन वी मिस दैट पॉइंट? तो मंदी किधर होगा सर? देखो ये जो तरुण ने बोला ना, इंडिया में मंदी सोचना पाप है, मंदी सोचना पाप है। यहाँ फक्त तेजी करो, और अगर गलती से लॉस हो गया तो गवर्नमेंट आपको रिफंड देगा वो लॉस का। सो विन विन सिचुएशन है, नफा हो ले लो, और लॉस हो जाए तो गवर्नमेंट देगी। क्या चाहिए आपको? दिस इज व्हाट। हाँ बोलो एजियो। यस सर। एजियो हंट, बोलो बोलो, बहुत मंदी बोलता है तुम। सर वो मेरे को चार्ट और डाउन वाला ही समझ में आता है। तेरी अब बीमारी है क्या मेरे जैसा? सर पता नहीं सर, मेरे बीमारी तो नहीं जैसा बोलूंगा बीमारी सर। है मेरे क्या? को मेरे को सर इक्विटी पे मतलब सर ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ अभी भी जैसे सर मैं सिल्वर में शॉर्ट हूँ, वो मतलब समझ में ही वही चीज आता है। मतलब मैं मतलब बाइंग भी अगर कुछ करना रहता है तो मैं चार्ट इन्वर्ट करके देखता हूँ। कितना उम्र है आपका? सर मैं
28 है सर। अरे दोस्त, मैं एक तेरे को एडवाइस देता हूँ, फ्रेंडली एडवाइस। ये उम्र में इतना मंदी का ध्यान मत रख, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होएगा। आफ्टर 50 रख। यस सर, बहुत सारा दुनिया है, अच्छा है। ये शेयर बाजार को गोली मारो, एंजॉय लाइफ। और ये मंदी वो सौदा होता है ना, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, सब कुछ खराब लगता है। अपने को लगता है कि अभी अर्थक्वेक आएगा, अभी प्रमोटर बीमार गिर जाएगा, ऐसा सब नेगेटिव थॉट्स आता है। ये तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, तो अभी माइंड ब्लैंक रहता है। बट इन यंग एज लाइक योर्स, इट विल अफेक्ट यू डियर। सो आई थिंक वो जो आपका बेरिशनेस है ना, उसको 50% पे लेके आओ। अच्छा अच्छा वो सोचो, सर करो मैं मत। एग्रीकल्चर में मेरा मैं एग्रीकल्चर में मेरी तेजी सोचता हूँ, मतलब मैं उसमें इन्वेस्ट भी करता हूँ एग्रीकल्चर में, मतलब लैंड में। अच्छा स्टॉक्स में नहीं, लैंड में मतलब। अच्छा, आप करते हो, वेरी गुड। हाँ सर, वो मेरे को उसमें मतलब वो फ्यूचर लगता है कि ग्रोथ इसमें हो सकती है। मैं सर कोशिश करूंगा सर, मैं मेरा मतलब थोड़ा माइंडसेट को करने की। नहीं, देखो, ये 2-3 हजार जो भी शेयर है, 5,000, 6,000, 2,000, 1,000, कोई तो अच्छा लगता होगा तेरे को। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज बैड, देयर आर सो मेनी सर जैसे गुड। क्यूएसआर में सर वेस्ट लाइफ का मेरे पास है, वेस्ट लाइफ है सर, जीएसके है, मतलब हाँ, जीएसके मतलब रखा है नहीं सर, नहीं, पहले का नाम रखा मत हुआ ले, जीएसके। नाम मत ले, बट ऐसा रखो पोर्टफोलियो में, शेयर रखो, यू विल मेक मनी। ये ट्रेडिंग में क्या होगा, आप बड़ा ट्रेडर है 1 करोड़ आएगा, मेरे जैसा ट्रेडर है 10 करोड़ आएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इन इन्वेस्टमेंट्स आई कैन शो यू कि 100 रुपया और 50,000 रुपया हो सकता है। सो inculcate in you investing habits also. See, if you will say कि who am I, तो सब लोग बोलेगा मंदी वाला है ये। अरे मंदी वाला वो तो टाइम पास है मेरे लिए। आई एम एन इन्वेस्टर, सीरियस इन्वेस्टर, because I make lot of money in investments. Trading is only time pass. वो थोड़ा बहुत रुपया आता है, मजा आता है, बस और कुछ नहीं। But to remain in a constant negative frame of mind is harmful to us. So I would say surround yourself with a lot of good shares, and bad shares you short. I think you will make tons and tons and tons of money. सर लिक्विडिटी भी तो हो सर, बैट सर में वॉल्यूम ही नहीं है। हाँ? सर वॉल्यूम भी तो हो सर, वॉल्यूम तो रहती नहीं है सर, अब मैं कैश में करता हूँ। अरे सुन भाई, तेरे को कौन सा 1 लाख शेयर लेने का है? नहीं दो नहीं सौ सर, पांच सौ ले। अरे अरे सर 1,000 की वॉल्यूम भी नहीं है। हाँ, तो क्या हो गया? आपको कितना लेने का है? और देखो, ये गलत बात है, ये वॉल्यूम नहीं है। आप मेरे को कौन सा भी काउंटर बोलो, और आप बोलो कि इसमें वॉल्यूम नहीं है, मैं वॉल्यूम मतलब मैं सौदा डालूंगा, वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा। सर सो इतना वॉल्यूम से तो डोंट मेरा से कि दिमाग खराब, मैं वॉल्यूम गिर नहीं है। जाऊंगा। नहीं, डोंट से वॉल्यूम नहीं है। आपको जितना भी लेना है उतना आराम से मिल जाएगा बॉस। और ये थोड़ी आईसीआईसीआई बैंक आपको लेने का है कि वॉल्यूम चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसे ऐसे Investing is very simple. Identify good shares, buy them, and don't buy banking, don't buy technology, buy industrials, and this QSR is my new, it, old है but new है। बोलो, और क्या बोलते हो ऐसे भाई?
सर आज सर अभी सर जैसे मतलब स्टॉक की मतलब बात कर सकते हैं सर यूएस वाले की? हाँ बोलो ना सर जैसे अभी सर मैंने SW के स्टैनली ब्लैक एंड डेकर अभी मतलब उसको मैंने मतलब मेरी पोजीशन उसकी पहले की थी लास्ट ईयर की, उसको भी स्क्वायर ऑफ करा। मतलब वो उसका मैंने सोचा नहीं था कि वो मतलब इतनी गंदे हालत में आ जाएगा। यूएस का सच में बहुत बुरा हाल है। और सर इन्वेस्टमेंट में समझ ही नहीं आता इंडिया में करे कि यूएस पे करे। वहां पे मतलब सर 2-3 के पीई पे चल रहे हैं सर स्टॉक, सेम स्टॉक। मतलब स्टैनली ब्लैक सर ये डेकर वाली कंपनी, ये तो अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी है। अभी सर मतलब अभी क्या बोले, अभी इधर मारुति ये भाव है, फोर्ड ये भाव है, ये इतना मार्केट कैप है, क्या बोलेगा। अब सर जैसे पेज इंडस्ट्री यहाँ पर ये कितने खतरनाक रेट पर है, वहां पे वो हैंस ब्रांड HBI सर कोई लेने को तैयार नहीं उसको। लिवाइस और ये चीजें मतलब सर इतने कचरे रेट में मिल रही वहां पे। वो पेज का यहाँ पे वो ट्रेंड का रेट सर पता नहीं सर, या तो सर मेरे को भी आता नहीं है। Where do you stay? सर इंदौर। Indore. You DM me. Yes sir. No, but our market is a funny market, very thin. Everything is cornered. Okay. तो जो भाव बनाना है बना सकते हो. That's the game. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Thank you Ezio for being with us. सादिक भाई बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सादिक भाई बोलो। नहीं बोलने का। सर कैसे है? सादिक भाई। हाँ जी हाँ ठीक ठीक है। सर, मैं वो बोल रहा था, अभी आप एजीओ को बोल रहे थे ना कि ये कंपनी खरीदो, तो वो कंपनी कब मिलेगी सर हमको? वो तो आइडेंटिफाई हम कर ही नहीं पा रहे हैं। सर आवाज आ रही मेरी? सर एक कंपनी बता सकता हूँ सर मैं। हाँ बोलो बोलो। कृति न्यूट्रिएंट्स सर BSE की कंपनी है, वॉल्यूम रहती नहीं है, मतलब 200 करोड़ की है। मतलब वो इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर इसका जो मूंगफली का तेल है वो भी मेरे घर पे यूज होता है, मतलब काफी टाइम से, उस बेसिस पे मतलब। दैट्स इट सर। क्या नाम बताया? कृति न्यूट्रिएंट्स। हाउ डू यू स्पेल इट? KRITI। ARITI। KRITI। कृति कृति। K for कोटक। K for कोटक। हाँ कृति कृति। न्यूट्रिएंट्स। ओके गॉट इट। सादिक भाई बोलिए। सर मैं वही बोल रहा था, वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बोला ना कि वो 50 रुपए से 50,000 बन जाएगा, तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं ना सर। वो कंपनी हम तो आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं इतने जमाने से। तो फिर उसके लिए क्या करें? DM में? हाँ जी ठीक है, DM में मिलता है। सादिक भाई 50 रुपए का ही है। हाँ ठीक है, इसको भी उठा देते हैं ना सर। इसके पहले हमने एक वो लिया था ना, उसका नाम क्या है, किसान किसान मोल्डिंग। अपनी किसी से बात चल रही थी ना, प्रिंस पाइप को। नहीं मेरा कोई बात मैं भी बकवास है। बकवास है, ठीक है मैं भी बकवास है, छोड़ो। चलो ठीक है समझ लो उतना ही है। हाँ क्या समझ भाई और कोई है? नहीं सर, we can close down. Yeah, we can close down the show. Yeah. So thank you everybody. God be with you. Good See you night. next week in the space. Please be good to everybody and especially to me. Thank you very much. Okay, bye. Thank Bye, you. sir. Good night. Bye. Good night sir. Bye. Good night sir.